मवालियान हैदर करार आपसे बसदब इल्तमास के बराह करम हुसैनिया नौ तामीर में जल्द से जल्द आने की ज़हमत फरमाए। महफिल का आगाज होने जा रहा है और तिलावत कलाम पाक के लिए मौलाना मौसूफ तशरीफ ला चुके हैं और बस चंद दकीकों में तिलावत कलाम पाक और हदीस के साथ तिलावत से आप हज़रात के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाने जा रहे हैं। मौलाना सैयद आले अहमद नजफी साहब तिलावत कलाम पाक और तिलावत हदीस के साथ से आप हज़रात के क़ुलूब को नूरानी फरमाने जा रहे हैं। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبطاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا من اختاره الله أتعدني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي
قد عظمت لك فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم رائحة طيبة كأنها رائحة أخي بن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتعظني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد عظمت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل محمد وآل محمد. ثم أعطيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا بقاه يا رسول الله، أتعظني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد عظمت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم محمد وآل محمد. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتعذرني أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد عدلت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويأخذك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد عدلني أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد عدلت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالنبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه الصلاة والسلام إذن والله فزنا وفاز عشيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه الصلاة والسلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. तिलावत कलाम पाक कल्ब जिगर को तक़वियत देने वाली किताब कुरान मजीद जिसकी तिलावत से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे और मजीद दिलों को नूरानी बना रहे थे। तिलावत हदीस किस्सा से तमाम मोमिनीन से मैं फिर इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप हज़रात जहाँ भी हैं बराए करम फर्श महफिल में तशरीफ ले आए। महफिल का आगाज़ हो चुका है और मैं ख़ास तौर से ये पटाखे दगाने वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़िक्र अहले बैत शुरू हो गया है और ज़िक्र अहले बैत पर इन पटाखों की कोई हैसियत नहीं है, इसको बंद कर दीजिए और तज़किरे अहले बैत में खलल किसी तरह से न वाक़ होने पाए। आइए तिलावत कलाम पाक के बाद तिलावत हदीस किस्सा के बाद मैं बिला फासला और बगैर किसी तमहीद के इल्तिमास कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद अस्करी खान साहब किबला से कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह इमाम में अपना नसीह खराज अक़ीदत पेश फरमाएं। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। अच्छा नहीं लग रहा है ना? अरे नहीं अच्छा लग रहा है। एक सलवार सब मिल के बावाज़ बुलंद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वलाक़िबतु लिअहलि तक़वा वल यक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमी अफ्तहिय्युत तहामी अस्सराजुल मुग़ी वल कौकब दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना वल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल महमूदिल महमद बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सिय्यमा ला बक़ियतिल्लाहिल अज़म रूही व अरवाहुना लिमक़दमिल फ़दा व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सब मिल के सलवात पढ़े बाबा दे बोले। एक और इससे बेहतर अंदाज़ बाबा दे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि। अव्वलन मैं तमाम उलमाए किराम और शुअराए किराम और मोहतरम सामीन को इस इमाम अस की विलादत बासादत के मौके पर दिल की गहराइयों से तबरीक और तहनीत पेश करता हूँ। ज़ाहिर है कि जश्न है और जश्न में तकरीर जो होती है वो 15-20 मिनट की होती है। इसमें होता यह है कि मजालिस में शुअरा पेशखानी करते हैं तो इन्होंने अपने इंतकाम को एक बड़ा खूबसूरत अंदाज निकाला कि महफिलों में मौलवियों को पेशखानी बिठा दिया। और आपको मालूम है कि पेशखानी 15-20 मिनट की होती है। इससे आगे बढ़ जाए तो मैं करूँगा पेशखानी मजमा करेगा फातिहा खानी। सलवात पढ़िए बाबा दे बुलंद। तो अगर जहमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। ये कल्बे महफिल है, ये अगर खाली रहेगी तो लुत्फ़ नहीं आएगा। ठीक है, हमें तो आप चाहे जैसे सुन लें, आपके कस्बे के हैं, मगर जो शुअरा आए हुए हैं दूर दराज से, इनके लिए तो बहरहाल थोड़ी जहमत होगी। थोड़ा आगे आ जाएं, सलवात पढ़ते रहिए और बाबा दे बुलंद आगे आइए। बाबा दे बुलंद अल्लाहुम्मा। मैं आगाज़ कर रहा हूँ यहाँ से कि वो खुदा जो साहिब इज़्ज़त व जलाल है, वो खुदा जो मालिक कुदरत व कमाल है, वो खुदा जो खालिक हुस्न व जमाल है, वो खुदा जो मुसव्विर ख़द व ख़ाल है, वो खुदा जो मुक़ल्लिब माह व साल है, वो खुदा जो मंबे जूद व मनाल है, वो खुदा जो रहमान भी हो और रिज़वान भी, वो खुदा जो हन्नान भी और मन्नान भी, वो खुदा जो दयान भी और बुरहान भी, वो खुदा जो सुल्तान भी और सुबहान भी, वो खुदा जो मुस्तान भी और गुफरान भी, वो खुदा जो रहीम भी और करीम भी, वो खुदा जो अलीम भी और अजीम भी, वो खुदा जो हलीम भी और अलीम भी। सलवात पढ़िए बाबा दे बुलंद।
उसी खुदा मुताल ने इंसानों की हिदायत के लिए इस कायनात आदम आलम में कुछ किताबें भेजी, कुछ सहीफे भेजे। उन किताबों में तौरेत है, उन किताबों में ज़बूर है, उन किताबों में इंजील है, उन किताबों में कुरान है। तौरेत भी किताबुल्लाह, ज़बूर भी किताबुल्लाह, इंजील भी किताबुल्लाह और कुरान भी किताबुल्लाह। ये सब अल्लाह की किताबें हैं जिन्हें किताबुल्लाह कहा जाता है। तौरेत भी किताबुल्लाह, ज़बूर भी किताबुल्लाह, इंजील भी किताबुल्लाह और कुरान भी किताबुल्लाह। मगर इन तमाम किताबों में और कुरान में एक बुनियादी फ़र्क यह है कि सारी किताबें कलामुल के सारी किताबें, ये बड़ा शरफ है, ये सारी किताबें किताबुल्लाह हैं। ये शरफ सिर्फ कुरान को मिला कि कुरान किताबुल्लाह और कलामुल्लाह भी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। ये शरफ सिर्फ कुरान को मिला है कि कुरान किताबुल्लाह भी और कलामुल्लाह भी है। तो कुरान क्या है, मैं क्या करूँ अपने खामोश सामीन के दरमियान। मुख्तसर ये है, कुरान कंज़ इरफान है, कुरान रहमत यज़दान है, कुरान किताब खुदा रहमान है, कुरान हमारी आन बान शान है, कुरान हम सब की पहचान है। कुरान का लाने वाला जिब्रील अर्श मकान है, पहुँचाने वाला मोहम्मद से इंसान है। इसका मुहाफ़िज़ लक़ब कुल ईमान है, इसका वारिस इमाम ज़मान है। मानना दलील ईमान है और जो मुखालिफ पक्का शैतान है। सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो कुरान का मुखालिफ अल्लाह, यह किताब अल्लाह के कुरान, इसी कुरान के सिलसिले में अल्लाह फरमा रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। यह आयत है, रवायत नहीं है, जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह ये कह रहा है कि देखो, इस किताब कुरान की किताब खुदा होने में न शक की गुंजाइश है और न शुबे की गुंजाइश है। ला रैब ये अल्लाह की किताब है, बेशक ये अल्लाह की किताब है। उसके बाद अल्लाह ने कहा सुनो, इस किताब के कुछ सिफात हैं। इरशाद हुआ कि वह हुदल मुत्तकीन। इस किताब की पहली सिफत यह है कि ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, साहिबान तक़वा के लिए। जरा ठहरिए और सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो बात समझ में ना आए बाद में पूछ लिएगा। अल्लाह ने कहा ये किताब हिदायत है उन अफराद के लिए जो मुत्तकी हैं, साहिबान तक़वा हैं, उनके लिए किताब हिदायत है। डॉक्टर आपको दवा दे और ये दवा है, ये शफा है सेहतमंदों के लिए, तो लोग कहेंगे डॉक्टर पागल हो गया है। दवा शफा है बीमारों के लिए, दवा शफा सेहतमंदों के लिए नहीं है। हमने कहा जनाब ये खाना है पेट भरों के लिए। आप कहेंगे आपका दिमाग खराब है, खाना होता है भूखों के लिए, पेट भरों का लिए खाना थोड़ी होता है। हमने कहा ये पानी है शराबशुदा लोगों के लिए। आपने कहा गलत कहा आपने, पानी है प्यासों के लिए। तो अल्लाह के कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। या अल्लाह मुत्तकीन के लिए हिदायत का अमल, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के लिए खास तबके का तस्करा कर रहा है। सलवात पढ़िए बाबा ने वाला। अब देखिए, अगर तकदीर का कुछ वक्त बढ़ जाए तो नाराज न होइएगा, इसलिए कि जब तक मजमा नहीं आ जाएगा मैं छोड़ूंगा नहीं तकरीर को। आ जाएगा इंशाल्लाह छोड़ देंगे। अब हो सकता है 20 मिनट बढ़ जाए, हो सकता है 30 मिनट हो जाए। तो अल्लाह ने कहा ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब सवाल ये, मुत्तकी किसे कहते हैं? किताब हिदायत है साहिबान तक़वा के लिए। मुत्तकी किसे कहते हैं? काल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। मुत्तकी बस वो लोग हैं जिनका ईमान गैब पर है। ये आधे घंटे की बात थी जो मैं 2 मिनट सुना ले गया। का किताब हिदायत है किसके लिए? का मुत्तकीन के लिए। मुत्तकी कौन है? काल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। मुत्तकी बस वही लोग हैं जिनका ईमान गैब पर है।
यानी अगर ईमान गैब पर नहीं है तो वो मुत्तकी नहीं है। बस वही लोग मुत्तकीन का ईमान गैब पर है। तो हमने पूछा अपने मुसलमान भाइयों से, आपका ईमान गैब पर है? कहा हाँ, हमारा ईमान गैब पर है। अल्लाह गैब ईमान है, जन्नत गैब ईमान है, जहन्नम गैब ईमान है, कौसर गैब ईमान है, सफेद गैब ईमान है। हमारा हर गैब पर ईमान है, हर गैब पर ईमान है। मगर जब मामला ईमान में गैब का आया तो ईमान गैब हो गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। हिदायत है उनके लिए जो मुत्तकी है। मुत्तकीओं ने कहा वो लोग हैं जिनका ईमान गैब पर है। तो हमने कहा भैया मुसलमान गैब पर ईमान है? कहाँ बिल्कुल है। तो जो आपका ईमान गैब पर तो आप मुत्तकी ठहरे। कहा बेशक, अल्लाह खुद कह रहा है कि जिसका ईमान गैब पर वो मुत्तकी है। हमारा ईमान है, हम मुत्तकी हैं। तो सारे मुसलमानों ने कहा कि हमारा ईमान गैब पर है। तो सब ठहरे मुत्तकी। देखिए, मिलेगा उससे जो बगौर सुनेगा। अगर मूसलाधार बारिश हो और बर्तन उल्टा रख दें आप, तो बारिश हो जाएगी, तरफ में कुछ नहीं आएगा। तो मलिसों में महफिलों में मिलता उसे है जो अपने ज़हन के दरवाजे खोल के रखे। बाबा के बोलो सलवात पढ़िए। कभी ईमान गैब पर है तो सब मुत्तकी हुए, लेकिन कुरान ने कहा मुत्तकी बस वो लोग इनका ईमान गैब पर है। तो सारे छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब ने कहा हमारा ईमान गैब पर है। तो सब ठहरे मुत्तकी। कहा बिल्कुल। तो सवाल मुत्तकी कहाँ जाएगा? तो कुरान ने कहा वह उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन जितने सब जाएंगे जन्नत में, सब जाएंगे जन्नत। जितने मुत्तकी हैं सब जाएंगे जन्नत में। हमारे बड़े भाइयों ने कहा हमारा ईमान गैब पर है, तो सब ठहरे मुत्तकी। तो सबको जन्नत में जाना चाहिए। नहीं, आपने गौर नहीं किया। भाई सारे मुसलमानों को जन्नत में जाना चाहिए, लेकिन सबका ईमान गैब पर है। और जिसका ईमान गैब पर वह मुत्तकी, मतलब कहाँ जाएगा? क्या जन्नत में। तो सारे हमारे बड़े भाइयों को जन्नत में जाना चाहिए। मगर अब मैं इसको क्या करूँ अबूजर भाई, कि हुज़ूर ने कहा 73 फिरके होंगे, 73 में एक जाएगा जन्नत में, बकिया वहीं जाएंगे जहाँ जाना चाहिए। तो या अल्लाह, इस एक में कौन सी बात पैदा हो गई जो जन्नत में जा रहा है? इस एक का जन्नत में जाना दलील है। इस एक का किसी आयत गैब पर ईमान है जिस पर सबका नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पे। नहीं, मैंने कुछ अर्ज किया, कोई मसला नहीं है। तो कहा मुत्तकी हुआ जिसका ईमान गैब पर है। मुत्तकी कौन है? देखिए, दो लफ्ज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक है ईमान और एक है तकवा। एक है मोमिन और एक है मुत्तकी। कभी आपने गौर किया कि ईमान किसे कहते हैं और तकवा किसे कहते हैं? ईमान नाम है कुछ करने का। उलमा बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, इनसे खास तवज्जो। ईमान नाम है कुछ करने का और तकवा नाम है कुछ न करने का। सलावत पढ़िए बाबा दे वल्लभ। नहीं, बगैर समझाए लिए आगे नहीं बढ़ूंगा, चाहे घंटा गुजर जाए। तकवा नाम है कुछ न करने का, ईमान नाम है कुछ करने का। नमाज पढ़ना ये ईमान है। नमाज न पढ़ने से अल्लाह नाराज होता है। नाराजगी परवरदिगार से बचने का नाम तकवा है। ये मजमा नहीं बोलेगा, आप बोलिएगा। भाई नमाज पढ़ने का नाम ईमान है। न पढ़ने से अल्लाह नाराज होता है और अल्लाह के नाराजगी से बचने का नाम, जो नाराजगी से बच जाए शरीयत के इस्लाम उसे को मुत्तकी कहते हैं। सलवात पढ़िए बाबा दे वाला। गौर किया आपने? नमाज पढ़ना ईमान है और नमाज न पढ़ने से अल्लाह नाराज होता है। इस नाराजगी से बचने का नाम तकवा है।
गांव में मस्जिद है, घर में नमाज पढ़ना या ईमान है। मस्जिद में न पढ़ना ये अल्लाह के नाराजगी का सबब है। जो नाराजगी से बच जाए वही मुत्तकी है। सलवात बढ़िए फवाद बुलंद। थोड़ा हुआ करते रहे। नमाज मस्जिद में पढ़ना ईमान है। जमात तर कर देने से अल्लाह नाराज होता है। इस नाराजगी से बचने का नाम तकवा है। सलवात बढ़िए फवाद बुलंद। ये गलत कह रहा हूं? माह रमजान आने वाला है, रमजान के तकद्दुस को मान लेना ये ईमान है। मजाक उड़ाने से अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह की नाराजगी से बचने का नाम तकवा है। सलवात बढ़िए फवाद बुलंद। अल्लाह की नाराजगी से बचने का नाम तकवा। तकवा क्या है? तकवा विकायत का नाम है। तकवा तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। तकवा अपने आप को अल्लाह की नाराजगी से बचा लेने का नाम है। और जो बचा ले उसे कहते हैं मुत्तकी। इसी का नाम है तकवा। ये मजमा नहीं बोलेगा, मुझे मालूम है। मेरे मौला अली के दो अलकाब हैं। एक लक़ब अमीर अल मोमिनीन, और दूसरा लक़ब है इमामुल मुत्तकीन। एक लक़ब है अमीरुल मोमिनीन, एक लक़ब है इमामुल। ये बताना चाहता हूं कि तकवा ज्यादा अहम है या ईमान ज्यादा अहम है। अगर समझ जाए तो ठीक, न समझे तो जो समझ गया उनसे पूछ लीजिएगा। एक मौला अली का लक़ब है अमीरुल मोमिनीन और एक है इमामुल मुत्तकीन। यानी एक रिश्ता साहबान ईमान से मौला अली का और एक रिश्ता साहबान तकवा से है। साहबान ईमान से रिश्ता है, उसका नाम है इमारत। मोमिनीन के अमीर हैं। तो जब मौला अली साहबान ईमान के साथ आए तो अमीर बनकर आए। और एक लक़ब इमामुल मुत्तकीन, जब साहबान तकवा के साथ आए तो इमाम बनकर आए। मोमिनीन के अमीर है और मुत्तकीन के इमाम हैं। इमाम मोमिनीन का नहीं है। मौला अली का लक़ब इमामुल मोमिनीन नहीं है, इमामुल मुत्तकीन है। मोमिनीन के अमीर हैं, मुत्तकीन के इमाम हैं। तो एक रिश्ता मौला अली का मोमिनीन से है, एक रिश्ता साहबान तकवा का है। ईमान वालों का रिश्ता है इमारत का और साहबान तकवा के साथ इमामत का। अब देखना है कि इमामत जरूरी है, तकवा जरूरी है या ईमान जरूरी है। तो अगर अल्लाह ये कहे कि मैदान महशर में हम हर गिरोह को उसके अमीर के साथ बुलाएंगे, अगर अल्लाह ये कहे कि महशर में हर गिरोह को उसके अमीर के साथ बुलाएंगे तो मोमिन बन जाइए। और अगर अल्लाह ये कहे नदो कुल्लु नासिल बेइमाम ही, हमारे गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे तो मुत्तकी बनना जरूरी है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। एक और धीमी धीमी सलवात पढ़ लीजिए। लगता है सख्त हो गया मामला। तो ईमान मान लेने का नाम है। तकवा कुछ न करने का नाम है। अल्लाह के गज़ब से अपने आप को बचा लेने का नाम तकवा है। अल्लाह के नाराजगी बचा लेने का नाम तकवा है। जो बचा ले वही मुत्तकी है। देखिए लफ्ज़ें सादी सादी है और आपके लिए पढ़ भी नहीं रहा हूँ मैं, इसलिए कि आप तो ज़ाहिर है कि महफिल में अशार सुनने के मूड में हैं। तो महफिलों में ये जो नस्र का हथौड़ा है, ये लतीफ़ समातें ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। मगर मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ लोग आ जाएँ तो मैं छोड़ दूँ। देखिए बड़ी अहम बात है, तकवा और ईमान क्या है। तवज्जो दीजिएगा। एक सलवात पढ़ने वाले वाला हमारी निगाह में
सबसे बड़ी नेमत का नाम है जन्नत। हमारी निगाह में बाबा सबसे बड़ी नेमत का नाम है जन्नत। जन्नत से बड़ी कोई नेमत है ही नहीं। नमाज क्यों पढ़ते हो? जन्नत के लिए। रोज़ा क्यों रखते हो? जन्नत के लिए। ज़ियारत भी क्यों किया? जन्नत के लिए। हज क्यों किया? जन्नत के लिए। सारा मतलब जन्नत 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 जन्नत। तो हमारी निगाह में सबसे बड़ी नेमत का नाम है जन्नत, और सबसे बड़े खतरे का नाम है जहन्नम। जन्नत से बड़ी कोई नेमत नहीं है और जहन्नम से बड़ा कोई खतरा नहीं है हमारी निगाह में। इनाम, सबसे बड़े इनाम का नाम, नेमत का नाम है जन्नत। जन्नत से बड़ी कोई नेमत नहीं है और जहन्नम से बड़ा कोई खतरा नहीं है। जुमला ज़ाया जाएगा मुझे पता है, मगर अहले बैत की निगाह में जन्नत से बड़ी चीज़ का नाम है रज़ाए परवरदिगार। रज़ाए इलाही अहले बैत की निगाह में जन्नत से बड़ी नेमत का नाम है, और सबसे बड़े खतरे का नाम है गज़ब परवरदिगार। मर्ज़ी माबूद, और सबसे बड़े गज़ब का नाम है जहन्नम। सबसे बड़ा गज़ब नाम है गज़ब परवरदिगार। ना रज़ाए इलाही से बड़ी कोई नेमत है और ना गज़ब परवरदिगार को कोई ख़तरा है। ज़रा जोगिएगा मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, यह अहले बैत की निगाह में। दलील सुनिए आप, बच्चों को मालूम है, मैं से मुतवज्जो करूँगा। दलील क्या है? मौलाए कायनात ने कहा, आए मेरे माबूद, हमने तेरी इबादत तेरे जन्नत के लालच में नहीं की है और न तेरे जहन्नम के डर से किया है। तो मौला अली जो है वो अपनी ज़िंदगी का एक सजदा भी देने पर तैयार नहीं है जन्नत के लिए। अपनी हयात का एक सजदा देने पर तैयार नहीं है जन्नत के लिए। वही अली जो एक सजदा देने पर तैयार न हो जन्नत के लिए, वही अली शब-ए हिजरत अपनी जान देने पर तैयार हो गया मर्ज़ी महबूद के लिए। सलावत पढ़िए बाबा के बुलंद। नहीं, बहुत अहम बात कह गया। जिस चीज़ के लिए एक सजदा न दिया जा सके उसका नाम है जन्नत, और जिसके लिए जान देने पर तैयार हो गया मौला अली उसका नाम है रज़ाए परवरदिगार। तो रज़ाए इलाही तो बड़ी कोई नेमत नहीं है, और जो अपने आप को उनके मर्जी में ढाल ले उसी को कहते हैं बंदा। सलवात पढ़िए बाबा के बुलंद। तो कहा मुत्तकी बस वो लोग जिनका ईमान गैब पर है। ये अक़ीदा गैबत का फ़ायदा क्या है? बस दूसरी बात है, तमाम कर रहा हूँ। अक़ीदा गैबत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यह अक़ीदा हमें उन गुनाहों से बचाता है जो दरपर्दा होते हैं। नहीं, जो खुल्लम खुल्ला गुनाह होते हैं उसमें तो पुलिस खड़ी हुई है, बुजुर्ग खड़े हुए हैं और लोग खड़े रोक देंगे, लेकिन वो गुनाह जो पर्दे के अंदर होता है उन गुनाहों से सिर्फ और सिर्फ यह अक़ीदा गैबत जो रोकता है। और ये सलवात बाबा के बुलंद। जितना जिसका अक़ीदा गैबत मजबूत होगा उतने मोमिन उन गुनाहों से बचेगा जो दर पर्दा होती हैं। आप कहेंगे ऐसे तो नहीं मानूंगा, मिसाल दीजिए आप। तो मिसाल सुन लीजिए आप। एक कोई उस्ताद था, इसके 10 शागिर्द थे। पुराने ज़माने में पढ़ा था किताबों में, 10 शागिर्द, उस्ताद तो 10 शागिर्द। और उन 10 में से एक शागिर्द को उस्ताद को ज़्यादा चाहता था बनस्बत 9 के। तो एक दिन उन 9 ने कहा कि क्या मामला है कि उस्ताद इस एक को ज़्यादा चाहते हैं, हम भी तो शागिर्द हैं, हमें क्यों नहीं चाहते? किसी ने कहा रहे वो उनके वालिद से ताल्लुकात हैं, उनके वालिद कुछ पैसे से दे दिया होगा, इस तरीके से। कहा नहीं, पूछना पड़ेगा। सारे लड़के आए, उस्ताद का क्या बात है? कहा हम भी तो आपके शागिर्द हैं। कहा बिल्कुल हो। कहा मगर क्या बात है कि आप इससे ज़्यादा चाहते हैं, हमें कम चाहते हैं?
तो उस्ताद ने कहा इसमें बात है कि इस एक के अंदर जो क्वालिटी है, जो सिफत है, वो तो सब में नहीं है, इसलिए इसे ज़्यादा चाहता हूँ। तो लड़कों ने कहा नहीं, ये तो आप टालने के लिए कह रहे हैं, वरना हम सब बराबर हैं। तो उस्ताद ने कहा भाई टालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, यही मामला है। कहा कि अगर ऐसा तो इम्तिहान ले लीजिए। कहा ठीक है, कहा तुम तैयार हो तो इम्तिहान लूँगा मैं। अक़ीदे ग़ैबत जो है ये गुनाहों से रोकता है, ये सुना रहा हूँ, बड़ी अहम बात है, गौर से सुनिएगा। कहा इम्तिहान ले लीजिए। कहा ठीक है। दूसरा दिन आयो, सारे लड़के आ गए। उस्ताद क्या बात है? कहा आ गया हूँ, इम्तिहान ले लीजिए। उस्ताद ने कहा जाओ एक एक जिंदा परिंदा पकड़ के ले आओ। ये सब तो जानते हैं, आपको सुना रहा हूँ। जिंदा परिंदे लेके आ गए उस्ताद, ले आओ, ले आए। कहा क्या करना है? कहा कल जाओ इसे ज़िबा करके ले आना, मगर ऐसे जगह पर ज़िबा करना जहाँ कोई देखने वाला न हो। अक़ीदे ग़ैबत जो है वो गुनाहों से बचाता, जितना जितना मजबूत अक़ीदा होगा उतना इंसान गुनाहों से दूर रहेगा। है कहा कि ऐसी जगह ज़िबा करना जहाँ कोई देखने वाला न हो। सारे लड़के भैया गए। यार इस बार क्या हो रहा है? गए और जाने के बाद हर एक ने अपनी अपनी तरह, किसी ने पैसा कट जाएगा इंशाल्लाह, घबराइए नहीं आप, सलवात पढ़िए बाबा के बोले, पैसा कट जाएगा। हाँ ये इसाले सवाब को माइक लगता है। कहाँ गए माइक वाला भाई से बोलिए ठीक करिए, क्या तरीका है? तो कहा कि हमें लगता है कुछ साजिश नहीं हो रही है। कहा कि ज़िबा करके ले आओ, मगर ऐसे जगह पे यहाँ कोई देखने वाला न हो। सारे लड़के गए और हर एक ने अपने तरह, किसी ने बंद कमरे में, किसी ने बंद हाल में, किसी ने बंद किचन में, मालूम है कि ज़िबा करके ले आए सारे लड़के। और वो एक जिंदा लेके आया। सारे लड़कों ने कहा आज मालूम हो जाएगा। कहा था बड़ी क्वालिटी है, बड़े सिफत है। उस्ताद ने कहा ज़िबा करके लाना, ये जिंदा लेके आया हुआ है। अब वो उस्ताद सामने हाँ आ गए, कहाँ आ गया हूँ। एक को बोला तुमने कहाँ ज़िबा किया? अरे उस्ताद बंद कमरे में जहाँ कोई एक देखने वाला नहीं था। बिल्कुल ठीक है। तुम कहाँ ज़िबा किया? अरे वो हाल था बिल्कुल रोशनदान था, खामोश कर दिया, कोई देखने वाला नहीं था। तो अब हर एक ने अपने अपने एतबार से 9 से जब पूछ चुके उस्ताद, तो एक को बोला जो जिंदा लेके आया था। कहा तुमने तुम्हारी नाक कटा दी, कहा था ज़िबा करके ले आना, तुम जिंदा लेके आ गए हो, ज़िबा करके नहीं लाए। तो उसने कहा था हुजूर अगर आपने कहा होता ज़िबा करके ले आओ तो मैं परिंदा ज़िबा करके ले आता। आपने कहा था ऐसी जगह ज़िबा करना जहाँ कोई देखने वाला न हो। उस्ताद हमने लाख छाना रखो को, मगर कोई ऐसी जगह न मिली जहाँ वो एक देखने वाला न रहा हो। सलात पढ़िए बाबा के बलन। तो अक़ीदा ग़ैबत हमें गुनाहों से रोकता है। जितना ज़्यादा इंसान का अक़ीदा मजबूत होगा उतनी ज़्यादा वो गुनाहों से बचेगा। पर बात तमाम कर रहा हूँ, बड़े ताने दिए जाते हैं आपका इमाम, आपका इमाम, उनका वजूद साबित कीजिए। कुरान में कहाँ लिखा है? हमने अगर कोई एक आयतें हो तो मैं सुना दूँ, 32-35 आयतें तो मुझे याद हैं जो वजूद है इमाम ग़ैब पर दलील है, वरना 300 आयतें हैं कुरान में। और कोई अक़ीदा ऐसा नहीं है हमारा कि वह कुरान की आयत का सपोर्ट न हो। हर अक़ीदे के पीछे कोई ना कोई आयत है। कहा कोई एक आयत, हमने कहा चलिए एक आयत सुनाई देता हूँ। और ये आखिरी बात है, अल्लाह ने कहा होल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। ये आयत है, अल्लाह कह रहा है कि वो हुआ जिसने एक रसूल भेजा और जिसको भेजा इसको हिदायतों का मरकज़ बनाया है। और सुनो खाली हाथ नहीं भेजा है, बल्कि हमने इसे एक दीन दिया है। काम क्या होगा? का काम ये होगा कि हमारे अता काज़ा दीन को दुनिया के तमाम अदियान पर गालिब कर दे। देखिए क्या लहजा है, उलमा जानते हैं। कहा हमने भेजा हमारा रसूल हमारे दीन को दुनिया के तमाम अदियान पर गालिब कर देगा।
अब ये बात मुशरिकों को चाहे कितनी नागवार क्यों न गुजरे, मगर काम वही करेगा जो मेरा हुक्म है। ये आयत है, आयत अल्लाह मकाम फ़ख्र में कह रहा, हमारा नबी, हमारे रसूल, हमने भेजा, हमारे दीन को दुनिया के तमाम अदियान पर गालिब कर देगा। ये मजमा चुपचाप मजमा ज़रा हमें बताए कि सरकार दो आलम आए और आगे चले गए, क्या अल्लाह का दीन गालिब आया? आया गालिब? अगर आ गया होता तो जिस मुल्क में आप रहते हैं, इस मुल्क में 90 करोड़ आबादी बुत परस्तों की न होती। तो सरकार आए, आके चले गए, दीन तो गालिब आया नहीं। और अल्लाह ने कहा था हमारा रसूल हमारे दीन को गालिब कर देगा, सरकार आके चले गए, दीन तो गालिब आया नहीं। तो आइए, अल्लाह तो बुझा, तेरा दावा था कि हमारा नबी हमारे दीन को दुनिया के तमाम अदियान पर गालिब कर देगा, सरकार आए, आगे चले गए, दीन तो गालिब आया नहीं। तो जब आवाज़ आए, हमने कोई एक मोहम्मद थोड़ी रखा है, एक मोहम्मद नहीं रखा। वो सिलसिला मोहम्मद का पहला मोहम्मद था जो दीन लेकर आया, आखिरी आ जाए और दीन गालिब ना तब कहना सलात बढ़िए बाबा के बुलंद। आखिरी आ जाए गालिब ना तब कहना, बस तमाम बात तमाम हो गई। आखिरी आ जाए और दीन गालिब ना तब कहना। ये भैया बात बड़ी ज़ोरदार है, मगर मुझे पता अब नहीं बोलेंगे। कौन कहता है कि हम अपने इमाम के अंदर, ना, हम अपने इमाम का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, हम उस दिन का इंतज़ार जिस दिन अल्लाह का दिन गालिब आने वाला है। सलात बढ़िए बाबा के बुलंद। अगर आप बोल दिए होते मैं बात तमाम कर देता, मगर इससे एक बात पर शायद मनमा बोल दे, दीन तो गालिब आया नहीं। आ गया होता तो यहाँ इतने लोग न होते। एक मिसाल दूँ, बात समझ में आ जाएगी। एक साहब ने कहा हमसे, मौलाना एक हम महफिल करना चाहते हैं। हमने कहा अल्लाह कबूल करे। कहा वो तो करेगा ही, हाँ ऐसे बिल्कुल वो तो करेगा ही। कहा लोग होते हैं ना, हम ये करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल कबूल करेगा। तो हमने कहा फिर, कहा आप अपनी तरफ से कोई ऐसा शायर दे दीजिए जो तमाम शायरों पर गालिब आ जाए। सिर्फ शायर नहीं, ऐसा शायर जो तमाम शायरों पर गालिब है। अरे हमने कहा मत घबराइए, बड़े ताल्लुकात हैं शायरों से, ऐसा शायर दूंगा जो तमाम शायरों पर गालिब आ जाएगा। दावा मेरा किया कि तमाम शायरों पर। महफिल हुई, हमने भेज दिया एक साहब को, फ़ोन किया, हमारा भेजा हुआ शायर कैसा रहा? कहा मौलाना दावा तो बहुत बड़ा था, ऐसा शायर दूंगा जो तमाम शायरों पर गालिब आएगा। हमने हुआ क्या? अरे कहा आपका भेजा हुआ शायर बैरूनी शोहरत छोड़िए, मकामी शायरों पर गालिब नहीं आया, मकामी शायरों पर गालिब नहीं आया। दावा क्या था? ऐसा शायर दूंगा जो सब पर गालिब आएगा, तो किसी पर गालिब नहीं आया। तो मैं हुआ दावे में नाकाम, वो हुआ मकसद में नाकाम। दावा क्या था? ऐसा शायर जो सब पर गालिब आएगा, गालिब किसी बनाया। तो मैं हुआ दावे में नाकाम, वो हुआ मकसद में नाकाम। अल्लाह क्या कह रहा है? ऐसा नबी जो हमारे दीन को सब पर गालिब कर देगा। सरकार आए, आगे चले गए। अब मुसलमानों के सामने दो रास्ते रह जाते हैं, दो में एक पर चलना पड़ेगा। या तो नबी पाक को नाकाम मान लो, या वो कि जो पर्दे में उसे इमाम मान लो। सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अल अज़ीज़िल अजलीम। अल्लाह रास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी इस क़लील बात कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको अमाल सालिह का तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान उनको परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह जो बीमार हो बाक़ी इमाम उन्हें शफ़ा दे। या अल्लाह हमारे इमाम के दौर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अंसार में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका।
हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मोहम्मद अस्करी खां साहब क़िबला जिन्हें जो वक्त दिया गया था वो वक्त उन्होंने तकरीबन 15 मिनट ज़्यादा तकरीर की है और बहरहाल अब मज़ीद तमहीद और वक्त की ज़रूरत नहीं है। शुअराए कराम माशाअल्लाह से तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे आज के इस जश्न में महफ़िल की और रौनक बढ़ाने के लिए दूर दराज से शुअराए कराम तशरीफ़ लाए हैं। इनके अस्माए गिरामी आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमा लें। जनाब शहनशाह बिजनौरी मारूफ नाम जो आपका जाना पहचाना है, मुसलसल आप समात करते रहते हैं। जनाब ज़ैगम शमीम साहब अमरोहवी, ज़ैगम साहब से तो साबिक़ा नहीं है, बहरहाल इनके वालिद साहब जनाब शमीम अमरोहवी से, उस्ताद शमीम अमरोहवी साहब को हम लोगों ने बहुत सुना है लखनऊ में और बहुत पुख्ता और बहुत मज़बूत कलाम पेश करते थे। इंशाअल्लाह ये उनके फ़र्जंद हैं। बहरहाल शमीम साहब की खुशबू इनके अंदर भी ज़रूर होगी और मैं आपके खिदमत में और अस्मा पेश करूं। जनाब वासिफ़ अमरोहवी साहब और जनाब फ़हीम जलालपुरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब साहिल अमरोहवी, ये आपका पहचाना हुआ नाम है, पिछले साल भी मौजूद थे। जनाब सज्जाद बिजनौरी साहब, और अब तारुफ़ की ज़रूरत वैसे भी नहीं रहती, इसलिए कि यूट्यूब ने हर किसी का तारुफ़ हर किसी से करवा दिया है और लोग रोज़ हर किसी को सुनते रहते हैं। जनाब मासूम देहलवी साहब, जनाब फैज़ान मंगलौरी साहब, जनाब फ़खरी मेरठी, जनाब हैदर गोंडवी, जनाब कलीम असगर बिजनौरी, जनाब आसिफ़ जलाल बिजनौरी साहब, ये शुअराए कराम बारगाह है हुज्जतुल अस्र में नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। ये के बाद दीगरे आपकी खिदमत में अपने अशार से आपके क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँगे। ज़ीनत महफ़िल हमारी ये उलमाए कराम जिनकी वजह से महफ़िल के इस स्टेज पर, इस मसनद पर रौनक बढ़ गई है। जनाब हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना बकी जाफ़री साहब क़िबला, आली जनाब मौलाना परवेज़ कमाल साहब क़िबला, आली जनाब मौलाना तफसीर साहब क़िबला, आली जनाब मौलाना सैयद आले अहमद साहब क़िबला नजफ़ी, ये उलमाए कराम और हमारे मकामी शुअरा मौलाना ज़ीशान हैदर साहब क़िबला, जनाब मौलाना डॉक्टर हैदर शरीयती साहब क़िबला, महफूज सुल्तानपुरी, जनाब आलम सुल्तानपुरी और दीगर जनाब हसनैन जाफ़री, और ये तमाम तर शुअराए कराम माशाअल्लाह से तशरीफ़ ला चुके हैं और बारगाह अहले बैत में अपना खराज अक़ीदत मुसलसल पेश करते रहेंगे। आप हज़रात के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाते रहेंगे। मौलाना मोहम्मद अस्करी साहब क़िबला अपने बसीरत अफरोज़ बयान से आगाज़ कलाम में हम्द बारी ताला नसरी अंदाज में और कुरान की मदोसरा कर रहे थे। अहले बैत पाक का तज़किरा था। यकीनन हमारी ज़िंदगी का माहसल हम्द बारी ताला, हमारी ज़िंदगी का मकसद नात सरकार ख़त्मी मरतबत और हमारी ज़िंदगी का हदफ, हमारी ज़िंदगी का महवर व मरकज़ मनक़बत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। कब कैसे कहाँ किसको खबर कौन है क्या है, कब कैसे कहाँ किसको खबर कौन है क्या है, इदराक से बाला वो तेरी हम्द सना है। 14 को है ये फ़ख्र कि वो बंदे हैं वो तेरे, और तेरा शरफ है ये कि 14 का खुदा है, और तेरा शरफ है कि वो 14 का खुदा है। किताबे हिकमत रहमान पढ़ रहा हूँ मैं, किताबे हिकमत रहमान पढ़ रहा हूँ मैं बग़ैर किसी तमहीद के नज़री सिलसिले को ख़त्म करते हुए नज़्म का आगाज़ कर रहा हूँ। किताबे हिकमत रहमान पढ़ रहा हूँ मैं,
आगहियो बई खान पढ़ रहा हूँ मैं, मेरा शऊर तिलावत है हाफिजों से अलग, अली को देख के कुरान पढ़ रहा हूँ मैं। मेरा शऊर तिलावत है हाफिजों से अलग, अली को देख के कुरान पढ़ रहा हूँ मैं। तो तमाम हर्फ हैं उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। उन्हीं के नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तो अली वली से मदद मांग के तो देख कभी, ये कीमिया है हर एक मुश्किलों के हल के लिए। और कफन पे खाके शफा से अली अली लिख दो, यही बहुत है मेरे नामे अमल के लिए, यही बहुत है मेरे नामे अमल के लिए। हजरत हमद बारी ताला के बाद अगर नात सरकार ख़त्मी मर्तबत न हो तो यकीनन बात अधूरी रह जाती है। और हम और मनक़बत के दरमियान नात रखते ही इसलिए हैं कि ये वो शख्सियत है, ये वो ज़ात है कि जो दरमियान में रहकर मरजल बहरैन यल्तक़ियान बहनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान का हक़ अदा करती है। वो जिसका सना खां सरकार ख़त्मी मर्तबत, वो जिसका सना खां फितरत तकल्लुम, हस्ती के मनाजिर खमे अबरू के इशारे, आफाक है दामन की सबाहत पे तसद्दुक, कदमों के निशान ढूंढते फिरते हैं सितारे, कदमों के निशान ढूंढते फिरते हैं सितारे। तो उस रहमत आलम का कसीदा लिखूं कैसे, जो मेहरे इनायात भी हो अब्रे करम भी, क्या उसके लिए नज़र करूं जिसकी सना में सजदे में हो अल्फाज भी सतरें भी कलम भी, सजदे में हो अल्फाज भी सतरें भी कलम भी। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस की नगी हैं, माथा है कि वल फज्र की, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज़ है कि वल फज्र की आयत के अमी हैं। तो सर चश्मे कौसर तेरे सीने का पसीना, साया तेरी दीवार का मेयार इरम है, जर्रे तेरी गलियों के महो अंजुमो अफलाक, सूरज तेरे रहवार का एक नक्श कदम है, सूरज तेरे रहवार का एक नक्श कदम है। तो हैदर तेरी हैबत है तो हसनैन तेरा हुस्न, असहाब वफादार तो नायब तेरे मासूम, सलमा तेरी इज्जत है खदीजा तेरी तौकीर, जहरा तेरी किस्मत है तो ज़ैनब तेरा मकसूम, जहरा तेरी किस्मत है तो ज़ैनब तेरा मकसूम, जहरा तेरी किस्मत है तो ज़ैनब तेरा मकसूम। अजीजो, आज की रात जश्न बक़ियतुल्लाह और जश्न बक़ियतुल्लाह के लिए आप हज़रात आमादा हैं, लेकिन ये वो नूर है कि जिस नूर की ताबानी इस कदर ज़्यादा है कि तहम्मुल और बर्दाश्त हर किसी के बस का नहीं। इस नूर की आमद भी बड़ी धूम से होगी, इस नूर की आमद भी बड़ी धूम से होगी। कम ज़र्फ़ अगर होंगी पिघल जाएंगी आंखें, इस नूर की आमद भी बड़ी धूम से होगी। कम ज़र्फ़ अगर होंगी पिघल जाएंगी आंखें, तो अश्के गम शब्बीर से पलकों को भिगो लो, वरना उसे देखोगे तो जल जाएंगी आंखें। अश्के गम शब्बीर से पलकों को भिगो लो, अश्के गम शब्बीर से पलकों को भिगो लो, वरना उसे देखोगे तो जल जाएंगी आंखें, वरना उसे देखोगे तो जल जाएंगी आंखें। ये रात हमें इबादत में गुजारनी है, ये रात पूरी रात हमें जागना है और तज़किरे बक़ियतुल्लाह, जश्न बक़ियतुल्लाह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्ब फैज़ करना है। ये रात वक्त करो मेहदी ज़मा के लिए, ये रात वक्त करो मेहदी ज़मा के लिए, ये रात सबका मुक़द्दर संवार सकती है, ये रात नूर के सौगात लेके आई है, ये रात गांव का हर घर संवार सकती है, ये रात गांव का हर घर संवार सकती है। आइए मैं अब आपके दरमियान ज़्यादा देर ना हायल होते हुए मैं इल्तिमास करूंगा हमारे मेहमान, लेकिन मामला बहुत पेचीदा है। जिस तरीके से अगर दो खुदा हों तो निज़ाम कारोबार चल नहीं सकता है,
इस महफिल में दो नाजिम का नाम है, तो दो नाजिम बिल्कुल वही कैफियत है, लेकिन मैं नाजिम की हैसियत से नहीं हूँ। मैं मौलाना अस्करी साहब शोरा की पेशखानी कर रहे थे, मैं नाजिम की पेशखानी कर रहा था। और मेरे बाद मुसलसल इंशाअल्लाह बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, तो करीब के और बहुत करीबी हैं, कई रुख से करीबी हैं, लेकिन ज़ाहिरन आए बहुत दूर से हैं। मौलाना असगर हैदरी साहब क़िबला मोहताज तारुफ नहीं है, पूरी दुनिया जानती है इनको। पूरे हिंदुस्तान में तमाम इलाके के लोग, तमाम गांव के लोग, तमाम शहरों के लोग पूरी तरह से इनसे मुतारिफ़ हैं। और ये बस्ती तो ख़ास तौर से पहचानती है, खूब अच्छी तरह पहचानती है। अभी मुहर्रम का आशरा भी इन्होंने इस साल भी पढ़ा, इसके पहले भी यहाँ आ चुके हैं। और बच्चा बच्चा इनके तमाम तर नशेब फराज, तमाम तर इनकी गुफ्तगू से, इनके गुफ्तगू के अंदाज से पूरी तरह से लोग वाकिफ़ हैं और इनके दिलदादा हैं, इनको बखूबी पसंद करते हैं। और अगर मैं ज़्यादा देर इनको अगर फासले से रखा तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, लिहाजा मैं बिला फासला मौलाना असगर हैदरी साहब से क़िबला से गुजारिश करूँगा कि वह तशरीफ़ लाएँ और कुछ देर के लिए इन अफराद की जो प्यास है उसको कुछ देर में आकर और प्यास बुझाकर और फिर चाहे बैठ जाएंगे। इल्तिमास कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना असगर हैदरी साहब क़िबला से को तशरीफ़ लाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मुस्तनद शोराए किराम, फर्शे अज़ा पर हमेशा बैठकर आज मुस्कुराने वाले मोहतरम सामईन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब भी इस तरह दे दें कि मेरे लिए तो मुस्तहब था, आपके लिए वाजिब है। तो निज़ामत के हवाले से क़िबला फरमा रहे थे कि जिस तरह दो खुदा होते तो निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाता। खुदा की खुदाई आलमीन के लिए है, हम दोनों की निज़ामत जश्न बक़ियतुल्लाह के लिए है। अब तो और माबूद का फ़र्क है। आज की ये रात है, क़िबला ने सब कुछ कह डाला। नाते खुदा, हमदे खुदा, नाते रसूल, मनक़बत अहले बैत, एक नाजिम के जितने असरार व रमूज़ हैं उन्होंने पेश मंज़र में रहते हुए पस मंज़र से पेश कर दी है। मैं चंद लम्हों के लिए हाजिर हुआ हूँ, निज़ामत यूँ ही चलेगी। खालिक़े मिसरा मोहतरम जनाब रज़मी साहब सुल्तानपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं और जाहिर है कि आज का मिसरा आज की महफिल के लिए कि कारवां पर्दे से बाहर, रहनुमा पर्दे में है। माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि आपकी आज गुफ्तगू भी पर्दे में है, तमाम तर तबस्सुम भी पर्दे में है, वो जज्बे भी पर्दे में हैं, वो एहसासात भी पर्दे में हैं जो हमेशा महट से उभरते नहीं हैं, उबलते हैं। अमहट की सरजमीन, आज़ादारी सैयदुश्शहदा की सरजमीन, जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बर्रे सगीर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, अमहट अपना नाम दर्ज कराता है। और जाहिर है कि इस सरजमीन को असर हाजिर या गुज़श्ता अदवार के हर बड़े आलिम और ख़तीब ने अपनी ज़ात से, अपनी सिफ़ात से, अपनी खिताबत से मुतारिफ़ कराया है और उस असासे को आपने नस्लन बादा नस्लिन मुंतकिल भी किया है। मजलिसें भी होती हैं यहाँ। याद रखिए, मजलिसें हमेशा हमारे इल्म व हिकमत की दरसगाह होती है, लेकिन हमारी ये महफिलें हमारे तहज़ीब व तमद्दुन की आमाजगाह होती है। अब अगर आप यहाँ बोले तो बहुत अच्छा लगेगा और थोड़ा स्टेज भी बोलता है, क्योंकि महफिलों में अदब फर्श पर होता है, तहज़ीब स्टेज पे होती है। और जब तक अदब अपनी तहज़ीबों से वाबस्ता नहीं होता, उस वक्त तक अदब ज़बान में नहीं ढलता, अदब अल्फाज में नहीं ढलते। मैं यहीं से बात आगे करता चलूं कि महफिलों में बैठकर अपने बच्चों को तरबियत दें,
आज के वक्त जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने एक पटाखे की दुकान रात 12 बजे तक, अभी जो 12 तक का सफ़र कर रही है रात, वहाँ तक वो दुकान खोली हुई है। और जब मैंने उसकी तारीफ़ की कि माशाल्लाह इस बस्ती में ये सौगात भी, तो कहा आपने एक देखी है, 8 दुकानें लगी हुई हैं। याद रखिएगा, ये 8 दुकानें हम अपने बच्चों को कैसी महफिलें दे रहे हैं, हमें इसके लिए जागना होगा। इसलिए कि महफिलों में तहजीब मिलती है। जनाब अबूजर किंतूरी साहब गिराफ एजेंसी लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि दबिस्तान लखनऊ की आंखें लेकर के आए हैं। प्रोग्राम अमहट में होगा, दबिस्तान लखनऊ अपनी आंखों से देख रहा होगा, इसलिए कि हिंदुस्तान में उर्दू अदब की तहजीब के मरकज को लखनऊ कहा जाता है। नहीं देखिए, मैंने तहजीब के मरकज को कहा है, इसका मतलब यह है कि तहजीब चाहिए तो लखनऊ तक का सफ़र करना पड़ेगा, वरना अदब हर जगह मिलेगा। लेकिन जब ज़बान तहजीब के बगैर खुलती है तो बता देती है कि हम तहजीब से वाबस्ता नहीं हैं। आज इस दौर में, इस ज़माने में हमारे अदब का यही हाल रह गया है कि हम तहजीबों से दूर हो गए हैं, मगर अदब की दफलियाँ लेकर के हम बजाते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हमारे पास से तहजीबों का खात्मा होता जा रहा है। ये महफिलें उसी तहजीबों की बका के लिए मुनक़िद की गई हैं कि अगर ये तहजीब बाकी रहेगी तो तहजीब उस चादर को कहते हैं जो इल्म की कमी को भी छुपा कर आपको इज्जत माब बना करके रखती है। ये बहुत बड़ा जुमला अमहट वालों आज मैंने कहा है, और चूंकि मौलाना कल्बे हसनैन साहब जाहिर है हसन और हुसैन के इम्तिजाज को हसनैन कहते हैं, तो जिस तरह हसनैन में हसन और हुसैन पोशीदा हैं, उसी तरह आज के जश्न में 2 नाज़िमैन पोशीदा हैं। इसलिए कि अगर सामर्रा में 2 काजिम काजमैन हो सकते हैं तो अमहट में 2 नाजिम नाजमैन हो सकते हैं। भाई एक सलावात मिलके पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, अमहट की तहजीब का नारा अभी तक गूंजा नहीं है। ये यहां की मिलके सारे देखे माशाल्लाह, या अली क़िबला ने भी आज 25 साल बाद लगभग निजामत का आगाज किया है, ठहरी हुई निजामत का, खामोश निजामत का, साकित निजामत का। और मैंने भी, इन्होंने कहा बड़े करीब हैं, उसी कुर्बत ने मुझे मजबूर किया कि आज मैंने अपने अहद को अमहट के लिए तोड़ा। रज़मी साहब जैसे शायर अहले बैत जिन्होंने आज दिन में जहन को ताज़ा किया, खुदा की कसम वो तमसीलात पेश की हैं। अभी ये जश्न होगा, ये महफिल होगी, आप इरादे से पूरी तरह आमादा रहिए। मैं ज़बान देता हूँ खुदा की कसम कि खुदाए मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको मायूस नहीं भेजेगा, इसलिए कि वो दिलों के खुलूस को देखता है, वो जज्बों की ताजगी को देखता है, वो एहसास की सरगर्मी को देखता है, वो ज़मीरों की ज़िंदगी को देखता है। वो ज़मीरों की ज़िंदगी को देखकर अता करने लगता है। लिहाजा हमदे खुदा भी हो चुकी, नाते रसूल भी हो चुकी। बस आपके लिए जो बैठे हैं, हालांकि बड़ी दूर दूर तक हमारे यहाँ शबे बरात हलवों की नजर है और जश्न पटाखों की नजर है, लेकिन इन्हीं चीज़ों से अपने आप को बचाकर फर्श महफिल तक पहुँचा देने का नाम तहफ़्फ़ुज़ तहज़ीब है। ये जितने फर्श अज़ा पे आए हैं, ये तहजीबों के मुहाफिज बन कर के आए हैं और ये बता रहे हैं कि खालिस तहजीब हमारी फर्श अज़ा पे है। इस तहजीब को गलियों में न ढूंढना, इस तहजीब को चौराहों पे न ढूंढना, इस तहजीब को फर्श अज़ा से लेके उठना, पूरी कायनात तक पहुंचा देना। मैंने एक जुमला कहा था कि अगर तहजीब का हुसूल है, अगर अदब ज़बानों पे चढ़ा हुआ है, तो याद रखिएगा अदब एक ऐसा लिबास है, एक ऐसा लिबास है कि आपने देखा होगा
बहुत सारे अफराद कपड़े पहन करके आ रहे होते हैं, लेकिन आपस में गुफ्तगू करने वाले साहिबाने अदब कहते हैं चुप हो जाओ, जो आ रहा है बहुत नंगा इंसान है। मैंने मुड़ के देखा तो कपड़े भी पहने हुए है, 3 पीस भी है, सूट भी है, बूट भी है, हेड भी है, चश्मा भी है, हर चीज पहने हुए है, फिर भी नंगा क्यों कहा जा रहा है? तो पता चला जिस्म को तो लिबास पहनाए हुए है, जबान को नंगी छोड़ दिया है। और जो जबान को नंगी छोड़ देता है वो लिबास पहने हुए भी नंगा नजर आता है। शुक्र किया करो फर्श महफिल को चूम कर कि इसने अगर माँ ने लिबास दे करके हमें दुनिया में मुहज्जब बनाया है तो महफिलों ने जबान दे करके आलम में मुहज्जब बना दिया है। लिहाजा उलमाए किराम भी हैं और उलमाए किराम शोराए किराम के साथ डाइस पर, स्टेज पर इनका इम्तिजाज ये बता रहा है कि ये महफिलें इल्म व अदब का आमेज़ा हैं, और जब इल्म व अदब दोनों मिल जाएं तब इंसान की यतीमी का खात्मा होता है। मौलाए कायनात ने अपने अरबी के शेर में कहा है, लैसल यतीमुल लज़ी क़द माता वालिदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदबी। वो यतीम नहीं है जिसका बाप मर जाए, बल्कि वो यतीम है कि जिसके पास इल्म नहीं है, जिसके पास अदब नहीं है। तो उलमा इल्म देते हैं, शोरा अदब देते हैं। या आगे बढ़ कर के कहूँ कि मजलिसें इल्म देती हैं, महफिलें अदब देती हैं। और जब दोनों चीज़ें हमें हासिल हो जाती हैं तो दुनिया यतीम हो जाए, हम यतीम नहीं होते। जब ही तो किसी शायर ने कहा था, वो और होंगे यतीमाने मजहब व मिल्लत, वो और होंगे यतीमाने मजहब व मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम है। ये इसी मौके के लिए कहा था। बस आप आमादा हैं, महफिल आमादा हो चुकी है, दरमियान में ज़्यादा देर हायल नहीं रहना है। निज़ामत तो फ़कत समात और अदब के दरमियान एक इम्तिजाज का काम करती है जो जोड़ती जाएगी। आपकी समातें होंगी, ये रात होगी, आज कायम आले मोहम्मद की बात होगी, ये जश्न बक़ियतुल्लाह है। मैं यहाँ पर बस अपनी बात को पूरी तरह समेट कर हमदे इलाही मौलाना ने पेश की बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज के साथ, मगर फिर एक बार कहूँगा, जितने अभी इधर उधर मूड बना रहे हैं वो ये समझ लें, आले मोहम्मद का चाहने वाला इबादतों की तमहीद नहीं बनाता है, वो हर लम्हा इबादतों में मसरूफ़ रहता है, इसीलिए इबादत की कोई तमहीद नहीं होती है। मैं इतना अर्ज़ करता चलूँ बड़ी तवज्जो के साथ आपकी खिदमत में कि अभी मैंने कहा था कि इस तहजीब का हुसूल महफिलों के ज़रिए हासिल करना है। और आज जिंदाबाद है अलहाज मंजूर हुसैन खान करबलाई का घराना कि जिन्होंने निगाह डाल करके ये देखा कि अमहट की सरजमीन पर हर अज़ादारी है, हर अशरे हैं, हर जुलूस है, हर महफिल है, लेकिन 15 शाबान को कायम आले मोहम्मद का बड़ा जश्न नहीं है। लिहाजा आखिरी अली तक ये जश्न इस घराने ने मुनक़िद करके मौलाना अस्करी खान साहब क़िबला, मौलाना कल्बे अब्बास खान साहब क़िबला, और जाहिर है कि उसी घराने से जो करीब नहीं अकरब हैं मौलाना कल्बे हसनैन खावर साहब क़िबला, इन तमाम लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि जो उलमाए किराम हमारे शोराए किराम लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाए हैं। और आप तो अपने इमाम ज़माना की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के आए हैं, मगर याद रखिएगा मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है, जब इस पर अक्ल का पहरा आ जाए तो इश्क बन जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है, लेकिन जब ये अक्ल के पहरे में आ जाए तो ये इश्क बन जाती है, और जब मोहब्बत इश्क बन जाती है तो जनाब अल्लामा इक़बाल को भी कहना पड़ता है, बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क। बेखतर, अरे अब कहाँ हैं आप अमहट वालों? मैं तो देखता हूँ हमेशा आपको बम्बई में बैठकर कि आप किसी लफ्ज़ को ज़ाये नहीं होने देते। जाहिर है कितना बड़ा जश्न है, इमाम ज़माना का सदका हासिल कर रहे हैं बैठे हुए। और आज अभी मैं जब यहाँ पहुँचा था तो किसी ने बाहर से मैंने सुना था कि जब इमाम हाजिर की मदह कीजिए तो कहीं न कहीं से अशआर में तगज़्ज़ुल आमेज़ अशआर का आना लाजमी हो जाता है। आए क्यों ना, इसलिए कि ज़िक्र उसका है जो गैबत में है, ज़िक्र उसका है जो पर्दे में है, और गज़ल हमेशा पर्दों ही की तरफ बढ़ी है। तो मैं क्या करूं?
बड़ी तवज्जो रहे, गजल बेपर्दा हो जाए तो नज्म हो जाती है, और नज्म बेपर्दा हो जाए तो आजाद हो जाती है। अब मैं नहीं देखें मंजिल, जो साहिबान अदब है मेरी बात से बड़ी खुर्बत से इत्तेफाक करेंगे। जब गजल बेपर्दा हो जाए तो नज्म हो जाती है, नज्म बेपर्दा हो जाए तो आजाद हो जाती है। याद रखिएगा, दुनिया की आज़ादी और है, हमारे यहाँ की आज़ादी और है। जनाबे तैयब काज़मी ने कहा था, हम हट वालों अब खामोश नहीं बैठना है। जनाबे तैयब काज़मी ने कहा था, इसी बात को पेश नज़र रखते हुए कि याद रखिए औरों के यहाँ आज़ादी का मफहूम और है, फ़र्श अज़ा और फ़र्श महफिल पर आज़ादी का मफहूम बिल्कुल अलग है। इसीलिए दुनिया को आज़ादी का मुज़्दा हमने सुनाया और उस मुज़्दे के मरकज़ का नाम करबला बना। बड़ी तवज्जो रहे, मैं क्या करूं, जश्न उसका है जो मुंतकिम खून सैयदुश्शुहदा है, जो मुंतकिम करबला है। जब उसका नाम आएगा तो करबला सामने आएगी। अब आज़ादी का मफहूम हमारे यहाँ क्या है? जनाब तैयब काज़मी ने कहा, रिहा करने से पहले पर कतर देते हैं तायर के। हम हट वालों, अबूजर भाई, रिहा करने से पहले पर कतर देते हैं तायर के, असीराने कफस पर ये सितम सयाद करते हैं। रिहा करने से पहले पर कतर देते हैं तायर के, असीराने कफस पर ये सितम सयाद करते हैं। मगर हैदर के घर के लोग फितरूस की कसम वो हैं जो पहले पर अता करते हैं फिर आजाद करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हम हट वालों, सलामत रहें आप। क्या ली? अरे आज हाथों की इबादत का दिन है ना, आज तो गुरूर से कहना है कि अल्लाह अकबर है। बड़ी तवज्जो। तो अरबाब करम, अरबाब फिक्र नज़र, बात यहाँ तक आ गई है। मैंने आपसे कहा था कि ये तहजीब की चादर ऐसी है कि जो जहालत को भी छुपा लेती है। फिज़ा ने दरे ज़हरा पर कोई इल्म नहीं हासिल किया था, रहते हुए तहजीब हासिल कर ली थी। और जब इस दर की तहजीब मिली है तो फिज़ा पूरी ज़िंदगी कुरान में गुफ्तगू करती रही है। यही फिज़ा ने बताया कि जैसे मैंने दर फातिमा पे आके तहजीब पाई है, तुम्हें ज़िक्र फातिमा में तहजीब मिलती रहेगी। आज उस तहजीब के हुसूल के लिए हम इकट्ठा हैं। फहरिस्त हमारे पास भी नहीं है। इंशाअल्लाह हम और जनाबे खावर साहब दोनों दरमियान में आते जाते रहेंगे। एक महफिल चलानी है, कायनात नहीं। एक महफिल चलानी है, कायनात नहीं, और दोनों मिल के चलाएंगे। इसलिए कि वो घर सबसे कामयाब होता है जिसे हर भाई मिल के चलाता है। लिहाजा ये जश्न बक़ियतुल्लाह है, ये खुदा नहीं खुद ही चलाएगी। देखिए, खुदी का नाम आना नहीं है। आए हाय, खुदा और खुदी में फ़र्क क्या है? जनाबे सैफ जलालपुरी ने कहा, अगर आप अमहट वालों में पहुंचा ले गया तो मैं नात के शायर हवाले कर दूंगा। खुदा और खुदी, जिन्होंने अल्लामा इक़बाल को पढ़ा है वो फ़लसफ़े खुदी को मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन सैफ जलालपुरी ने 2 मिसरों में खुदा और खुदी का फ़र्क ऐसा वाज़े कर दिया कि ना लुगत की तरफ बढ़ना है, ना अदब की तरफ बढ़ना है, ना तावील की तरफ जाना है, ना तफसीर की तरफ जाना है। सैफ जलालपुरी ने 2 मिसरों में पूरा मसला हल कर दिया। कहा, खुदा सूरज बनाए, खुदा सूरज बनाए और अली सूरज को पलटाए। हट वालों, खुदा सूरज बनाए और अली सूरज को पलटाए, यही ये राज खुलता है। खुदी क्या है, खुदा क्या है? आइए हजरात, खुदी और खुदा का फ़र्क समझ में आ गया तो आइए आप हजरात के हवाले नाते पाक के लिए, नाते पैगंबर के लिए। हालांकि मेरा दिल बहुत मचल रहा था जब मौलाना हमद इलाही पेश कर रहे थे। उस वक्त आपने कहा था थोड़ी देर हायल रहें, उतनी देर मुझे लेना पड़ा। और ये भी फ़ौरन बताएंगे कि मैंने कितना ज़्यादा देर वक्त ले लिया है, क्योंकि अस्करी साहब के हवाले से तो काउंट करके बताया है। लेकिन गनीमत यह है कि मेरे लिए वक्त का तयन नहीं था, शायद इसीलिए कि ये करम फरमाई शामिल थी कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। यहाँ जितने बैठे हैं ना, ये इतनी दूर से आए हैं कि आलम ज़र से चले, आलम असलाब में आए,
आलम असलाब से चले, आलम अरहाम में आए, आलम अरहाम से चले, आलम दुनिया में आए, आलम दुनिया से चले, मजलिस बक़ियतुल्लाह में आए। इतना लंबा सफ़र किया है इस मजमे ने जो यहाँ तक आए हैं। हमद इलाही को हर एक ने अपने अपने एतबार से पेश किया है। लेकिन आज मैं अमहट की सरजमीन से जॉन एलिया के कज़िन ब्रदर, जनाबे जॉन एलिया के कज़िन ब्रदर शायर ने बड़ी प्यारी बात कही थी हमद इलाही के हवाले से, जिनका नामे नामी अहमद नवीद है। मंशा शहूद पर दुनिया के सामने उनका एक मजमुआ आया, हाँ और नहीं के दरमियाँ। मैंने जब उसका मुतालिया किया तो हमद इलाही को पूरी दुनिया के शोरा से अलग एक अलग पैराए में पाया। मेरा पूरा स्टेज भी इंशाल्लाह मेरे साथ होगा, सामीन भी होंगे, जो हाजिर हैं वो भी इमाम के हैं, जो गायब हैं वो भी इमाम गायब के हैं। बड़ी तवज्जो रहे। लेकिन जो अख्तियार रखते हुए सोए हैं उनके बारे में फैसला आप करेंगे। अख्तियार रखते हुए बड़ी तवज्जो रहे। जनाब अहमद नवीद कहते मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। हमद इलाही के कुछ मिसरे, अभी पूरी रात है, हम हैं, आप हैं, ज़िक्र बक़ियतुल्लाह है, खानवादे आले मोहम्मद का तज़किरा होगा। अभी तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी आपसे, लेकिन मैं ये चंद मिसरे इंशाअल्लाह अब्द और माबूद के दरमियान एक तकल्लुम को पेश करते हुए अहमद नवीद ने कहा, सीने में जो एक दर्द सा होता है वो तू है। रे ऐसे न सुनना। सीने में जो एक दर्द सा होता है वो तू है, और जो दर्द की शिद्दत से बिखरता है वो मैं हूं। हाय हाय हाय, अरे ऐसे अमहट वालों, आइए आ जाइए, तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह शहनशाह साहब आए हैं जश्न शहनशाह असरे रवा में। मगर ये शहनशाह मिर्ज़ापुरी हैं, वो शहनशाह दीन है, वो शहनशाह ईमान है, वो शहनशाह नजफ है, वो शहनशाह सामर्रा है, वो शहनशाह आलमीन है। अब अल्लाह जाने आप क्या सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। अब मैं ख़त्म ही कर दूं। मैं हालांकि रुका हुआ था कि अस्करी साहब की तकरीर ख़त्म हो जाए, लेकिन दिल बेताब बना रहा, बल्लियों उछलता रहा। थोड़ा सा मुझे सुन लो, अभी पूरी रात आपके साथ रहेंगे। वो एक चादर उड़ाने के बहाने हाथ मिला लिया होता। बहरहाल थोड़ा सा देख ले मेरे साथ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, जिगर निकाल के रख रहा हूँ इस महफिल में। और आज नाम ही है जिगर निकाल के रखने का। जो भी यकीन रखते हैं ना उस साहिब गैबत पर, वो रात को एक अरीज़ा निकाल कर पूरा जिगर रख देते हैं। जिस तरह आपने अरीज़ा निकाल कर जिगर रखा है, उसी तरह इन शोरा ने मनक़िबतों का जिगर वरक़े किरतास पे रखा है, ताकि जैसे अरीज़ा आपने बक़ियतुल्लाह के हवाले किया है, मनक़िबत ये आपके हवाले करेंगे। बस देखिए, एक एक बात, अगर आप ज़्यादा बेजार हो रहे हो तो मैं बैठ जाऊं। मैं अहवाल देख रहा हूं, जो आगे बैठे हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं ना। माशाअल्लाह अल्लाह ने आगे किया है आपको, और मेरी पूरी कौम आगे है। जो खुद पीछे हो जाए उसका क्या किया जाए। अल्लाह ने रखा है सीने में जो एक दर्द सा होता है वो तू है, जो दर्द की शिद्दत से बिखरता है वो मैं हूँ। मिट्टी में जो दरिया को डिबोता है वो तू है, मिट्टी में जो दरिया को डिबोता है वो तू है, और मिट्टी से जो कतरा सा निथरता है वो मैं हूँ। रज़मी साहब, मैं आपके सुल्तानपुर में हूँ। मिट्टी में जो दरिया को डिबोता है वो तू है, मिट्टी से जो कतरा सा निथरता है वो मैं हूँ। फूलों को जो शबनम से भिगोता है वो तू है, जो गुल की तरह धुल के निखरता है वो मैं हूँ। फूलों को जो शबनम से भिगोता है वो तू है, जो गुल की तरह धुल के निखरता है वो मैं हूँ। जंगल को जो खुशबू से बसाता है वो तू है, जंगल से जो हर शाम गुजरता है वो मैं हूँ। अब सारी बात छोड़कर मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। जो था वो जो होना है, जो होता है वो तू है। जो था वो जो होना है, जो होता है वो तू है, और होने के दुखों से जो गुजरता है वो मैं हूँ। अल्लाह जाने, बस मैं पढ़ चुका। अब मैं नाते पाक के लिए आपने डिसाइड किया है। जनाबे फ़हीम साहब जलालपुरी का नामे नामी आया है नाते पैगंबर के लिए, जिसके लिए शायर ने कहा, कब ये उम्मत। साहिल अमरोहवी साहब, माशाअल्लाह। देखिए, नात का साहिल ज़रूरी होता है,
वरना ये वो बेकरा समंदर है कि अगर बगैर साहिल के छोड़ दिया जाए तो पूरी रात गुजर जाएगी, नात नहीं रुकेगी। खुदा की कसम अबू ज़र भाई क्या कहना, शायर ने कहा कब ये उम्मत तेरे हसनैन तलक पहुंची है। कब ये दुनिया तेरे हसनैन तलक पहुंची है, अभी उम्मत तेरी नालैन तलक पहुंची है। आइए नाते पाक के लिए जनाब साहिल अमरोही साहब आपके हवाले हैं, मगर एक शर्त है कि आपने अब तक अपने मन का किया, लेकिन एक बार नाजिम के हवाले से अव्वल से आखिर तक, बड़े से छोटे तक जितने बैठे हुए हैं, एक खिराज सलवात गैबत तक आवाज पहुंचाने के लिए बुलंद तरीन पढ़ करके नाते नबी का इस्तकबाल कीजिए। सलामत रहे। हज़रत मोहतरम सलामुन अलैकुम। एक बार फिर हाज़री का शरफ हासिल हुआ, नाते सरवर कायनात का हुक्म हुआ है। मतला हाजिर करता हूँ, तमाम उलेमा से खुसूसी तवज्जो सरकार, मतला हाजिर करता हूँ। तैबा में जब से देखा है जलवा रसूल का, तैबा में जब से देखा है जलवा रसूल का, आशिक हुआ है सारा ज़माना रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, का। बेहतरीन अंदाज़े नात है, वाह 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 वाह। जब से देखा है जलवा रसूल का, और शेर हाजिर करता हूँ। आकर मलाइका मेरी आँखों को चूम लो, खूबसूरत मिसरा है, वाह 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 वाह। आकर मलाइका मेरी आंखों को चूम लो, मलाइका मेरी आँखों को चूम लो, देखा है मैंने ख्वाब में रोज़ा। क्या कहना है, वाह 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 वाह। आकर मलाइका मेरी आंखों को चूम लो, देखा है मैंने ख्वाब में रोजा रसूल का। है मैंने क्या कहना है, ख्वाब में रोज़ा रसूल का। और शेर हाजिर करता हूँ कि अब तक ये बात मेरी समझ में ना सकी, अब तक ये बात मेरी समझ में ना सकी। काफे है कैसे पालने वाला रसूल
काफिर है कैसे पालने वाला रसूल का। ये शेर बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बतौर खास ये शेर हाजिर करता हूं कि अपनी बिसात क्या है जो मद है नबी करें, कुरान पढ़ रहा है कसीदा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कुरान पढ़ रहा है कसीदा, क्या कहना है, वाह 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 वाह। रसूल का शेर हाजिर करता हूँ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। इस्लाम के वक़ार पा जब बात आ गई, इस्लाम के वक़ार पा जब बात आ गई, कुर्बान दीपा हो गया कुनबा रसूल का, कुर्बान दीपा हो गया कुनबा रसूल का। आकर जहां मलक भी इजाजत तलब करें, आकर जहां मलक भी इजाजत तलब करें, वो घर है कायनात में तन्हा रसूल। क्या कहना है भाई, वाह 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 वाह। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या अली, वो घर है कायनात, माशाअल्लाह भाई, वाह वाह वाह। तन्हा रसूल का। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन नात, मनकबत नवाजों से नात की समात का ये जज्बा आपने बेदार कर दिया है माशाअल्लाह। आज मनकबत नवाज नाते रसूल पर जिस तरह बोल रहे हैं और आप हक अदा कर रहे हैं। नारे तकबीर, अरे दोनों हाथ उठा के किबरियाई को बुलंद करें, जमाने के इमाम से दुआएं लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, सलामत रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चार मिसरे और हाजिर करता हूँ पहले, फिर उसके बाद तरह का कलाम जो आपने मिसरा दिया है क़िबला ने। चार मिसरे हाजिर करता हूँ। तुम झूठ को सच कैसे बनाओगे बताओ, देखिएगा क़िबला। तुम झूठ को सच कैसे बनाओगे बताओ, जब जहर कभी शहद में
घोला नहीं जाता। दो मिसरे हाजिर करता हूं जिनके लिए ये दो मिसरे हाजिर किए। जब जहर कभी शहद में क्या दलील दी है, घोला नहीं जाता, और फिर अपने ही हाथों से ज़बा काट लो अपनी। जब हक में नबी ज़ादी के बोला नहीं जा, क्या कहना है, खुद ही ज़बान काट लो अपनी। जब हक में नबी ज़ादी के बोला नहीं जाता, हाथों से ज़बा काट लो अपने। हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हक में नबी ज़ादी के बोला नहीं जाता, बहुत शुक्रिया आज़ाद। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले भाई। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं मतला हाजिर करता हूँ जो मिसरा दिया गया था। मुस्तफ़ा के नूर का एक सिलसिला पर्दे में है, कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा पर्दे में है। ये आज के मिसरे पर ताजा कलाम मुलाजा फरमाया। मुस्तफा के नूर का एक सिलसिला पर्दे में है, सिलसिला पर्दे में है। नूर है मंजर में और नूरे खुदा क्या कहना है, पर्दे। बेहतरीन मतला है, वाह वाह। क्या कहना है, नूर है मंजर में और नूरे खुदा पर्दे में है। और शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास के दुश्मने सिबते नबी से आके लेगा इंतकाम। दुश्मने सिबते नबी से आके लेगा इंतकाम। मुज़तरिब इब्ने शहे करबो बला पर्दे में है। क्या कहना है, वाह वाह। मुज़तरिब इब्ने शहे करबो बला पर्दे में है। और ये कताबन मैं दो शेर हाजिर करता हूं, देखिएगा। हादसा इसको समझ कर भूल जाएंगे सभी, जुल्म समझा था कि पूरी करबला पर्दे में है। और आम तो सज्जाद ज़ैनब कर गए इसको, मगर आज भी एक वारिस फर्शे अज़ा पर्दे में है। मुंतकिमे करबला वारिश फर्शे अज़ा क्या कहना है। एक वारिस
फरिशे बेहतरीन मिसरा है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जनाबे साहिल अमरोहवी साहब ने नात के साथ साथ फौरन मनक़िबत का हिस्सा यूं ले लिया कि अगर मुसलमान इनकी तरह होशियार होता तो नबी पाते ही अली ले लेता। सलामत रहें आप। अगर मुसलमान हमारे साहिल साहब जैसा होता तो जैसे इन्होंने नात पाते ही मनक़िबत नहीं छोड़ी, मुसलमान नबी पाते ही अली न छोड़ता। आइए हजरात, अब ये महफिल होगी, आप होंगे, रात होगी, ज़्यादा देर तक निज़ामत नहीं होगी, समाअत होगी। खुदा की कसम, आने वाले बाहर से जितने हैं आज हुसैनिया नौ तामीर की नौशाही देख रहे हैं, लेकिन ऊपर से फरिश्ते मजमे की जगमगाहट देख रहे हैं। दुनिया को ये लाइटें फैज़ नहीं देती हैं, फरिश्तों को ये बैठना फैज़ देता है। आइए हजरात, अब इस सिलसिले को मौलाना खावर साहब क़िबला के हुक्म से आगे बढ़ाया जाएगा। मैं तो फ़कत मुअज्जिन की तरह अजान दूंगा, फैसले खावर साहब करेंगे, ताकि ये वाज़े हो जाए कि एक कानून बनाने वाला नाजिम है, एक नाफिज करने वाला नाजिम है, और यहीं से दोनों की निज़ामत साथ चलेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उलमा इकराम का कि जिन्होंने अदब को इल्म के साये में उसी तरह रखा है जिस तरह खुदा ने जिस्म को रूह के साये में रखा है। आइए हजरात, ये उलमा, ये शोरा, ये रात बक़ियतुल्लाह की बात जो हमारी मारिफत में इजाफा करेगी, और ये मारिफत का इजाफा जहालत की मौत से बचाएगा। इसलिए कि हम दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मौत आए जहालत पर यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमने शहर के साथ बाबे इल्म का दामन थामा है, ताकि दुनिया पे वाज़े हो जाए कि इल्म की रोशनी में आ जाओ, इल्म की रोशनी में आ जाओ, मौत से जिंदगी में आ जाओ। हाय हाय, इल्म की रोशनी में आ जाओ, मौत से जिंदगी में आ जाओ। इल्म क्या है ये खुद समझ लोगे, आओ बस में अली में आ जाओ। यह है मंजिल। यहां से जनाबे फ़हीम साहब जलालपुरी को आवाज़ दी जाए, और ये इंतखाब जनाबे खावर साहब का है। मैंने कोई वतन परस्ती नहीं की है, ये खावर साहब का फैसला है, और सलवात आपकी ताईद है। बुलंद तरीन सलवात से इस्तकबाल फरमाएं। हाज़िरीन महफिल, सलाम अलैकुम। सबसे पहले आपको इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाबे इल्म का तज़किरा भी कर रहे थे मौलाना, मुलाज़ा फरमाइए एक कता कि खुशबू का जिस तरह से है रिश्ता गुलाब से, खुशबू का जिस तरह से है रिश्ता गुलाब से, रिश्ता वही अली का रिसालत माआब से, रिश्ता वही अली का रिसालत माआब से। तो अहमद है शहरे इल्म, अली बाबे इल्म है। अहमद है शहरे इल्म, अली बाबे इल्म है। दीने खुदा मिला है दरे बू तुराब से, दीने खुदा मिला है दरे बू तुराब से। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखेंगे खास तौर से कि अमहट की सरजमीन पे है जश्न मुंतजर, अमहट की सरजमीन पे है जश्न मुंतजर। शमशो कमर भी देख रहे हैं उठा के सर, क्या कहना, शमशो कमर भी देख रहे हैं उठा के सर। तारों की अंजुमन है जमाए हुए नजर, तारों की अंजुमन है जमाए हुए नजर। जैसे उतर के आ गई जन्नत जमीन पर, जैसे उतर के आ गई जन्नत जमीन पर। आ जाइए इमाम जियारत के वास्ते, महफिल है आप ही की सदारत के वास्ते, महफिल है आप ही की सदारत के वास्ते, की सदारत के वास्ते। आ जाइए इमाम जियारत के वास्ते, आ जाइए इमाम जियारत के वास्ते, महफिल है आप ही की सदारत के वास्ते। एक मतलब चंद अशर मुलाजा फरमाइए कि सुना है फिर कोई काबे में आने वाला है, सुना है फिर कोई काबे में आने वाला है। मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाला है, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाला है। फ़कत
अरीजा नहीं है असाए मूसा है, फकत अरीजा नहीं है असाए मूसा है, ये बहते पानी में रास्ता बनाने वाला है। क्या कहना है, वाह 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 वाह, क्या कहना है। फकत अरीजा नहीं है असाए मूसा है, ये बहते पानी में रास्ता बनाने वाला है, ये बहते पानी में रास्ता बनाने वाला है। तो शहर करीब है दिल से कहो न घबराए, शहर करीब है दिल से कहो न घबराए, नसीब सबका अरीजा जगाने वाला है, नसीब सबका अरीजा जगाने वाला है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे मुलाजा फरमाए सैयद सज्जाद के हवाले से कि पहन के हाथों में हाला की हथकड़ी निकला, पहन के हाथों में हाला के हथकड़ी निकला, बनाने सबकी वो हालाते जिंदगी निकला, बनाने सबकी वो हालाते जिंदगी निकला। तो उठा के देख लो तारीख बादे करबो बला, अली महाजे असीरी पे भी अली निकला, अली महाजे असीरी पे भी अली, बहुत खूब, अली महाजे असीरी पे भी अली निकला, अली निकला। उठा के देख लो तारीख बादे करबो बला, अली महाजे असीरी पे भी अली निकला। चार मिसरे और मुलाजा फरमाइए कि उसको अभी जीने की अदा तक नहीं आई, उसको अभी जीने की अदा तक नहीं आई, पेशानी अगर खाके शिफा तक नहीं आई, पेशानी अगर खाके शिफा तक नहीं आई, तो जब तक थे सलामत मेरे अब्बास के बाजू, अरे जैनब की रिदा छूने हवा तक नहीं आई, जैनब की रिदा छूने हवा तक नहीं आई, जब तक थे सलामत मेरे अब्बास के बाजू, जैनब की रिदा छूने हवा तक नहीं आई। एक मतला चंद अशार और मुलाजा फरमाइए, देखेंगे खास तौर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिसरा था कि पेशानियों में नूर ये रखा नहीं गया। मुलाजा फरमाइए शेर की इतना बुलंद कोई बनाया नहीं गया, इतना बुलंद कोई बनाया नहीं गया, जोहरा किसी के दर पे उतारा नहीं गया, जोहरा किसी के दर पे उतारा नहीं गया, जहरा के घर में कट गई फाकों की जिंदगी, जहरा के घर में कट गई फाकों की जिंदगी, दर पे किसी यतीम के देखा नहीं गया। थोड़ा सा बेदारी को सबूत दें। जहरा के घर में कट गई फाकों की जिंदगी, दर पे किसी यतीम के देखा नहीं गया, खालिक ने नूरे फातिमा रखा हिजाब में, खालिक ने नूरे फातिमा रखा हिजाब में, कुरान की तरह इसे भेजा नहीं गया, कुरान की तरह इसे भेजा नहीं गया। तो हर एक राह खुतबे जहरा ने रोक दी, आगे कोई फरार का रास्ता नहीं गया, आगे कोई फरार का रास्ता नहीं गया, आगे कोई फरार का रास्ता नहीं गया। तो दो दो गवाह साथ में लाई थी फातिमा, दो दो गवाह साथ में लाई थी फातिमा, अरे दावा बिना दलील के रखा नहीं गया। क्या कहना है, वाह 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 वाह। दो दो गवाह साथ में लाई थी फातिमा, दावा बिना दलील के रखा नहीं गया। इश्क़े गमे हुसैन में औलाद बेच दी, इश्क़े गमे हुसैन में औलाद बेच दी, आंसू मेरा किसी से खरीदा नहीं गया, आंसू मेरा किसी से खरीदा नहीं गया। तो जब आ गया अमीरे तबस्सुम महाज पर, बहुत अच्छा मिसरा है, वाह। जब आ गया अमीरे तबस्सुम महाज पर, फिर हुरमुला को दश्त में देखा नहीं गया। जब आ गया अमीरे तबस्सुम, क्या कहना, बेपनाह शेर है, फिर आता हो। जब आ गया अमीरे तबस्सुम महाज पर, फिर हुरमुला को दश्त में देखा नहीं गया। अरे सरवर के एक सलाम ने इतना जमा किया, सरवर के एक सलाम ने इतना जमा किया, लेकर वो अपने साथ बुढ़ापा नहीं गया, लेकर वो अपने साथ बुढ़ापा नहीं गया। तो करबो बला में देख लिया वज़्ने तशनगी, करबो बला में देख लिया वज़्ने तशनगी, दरिया से इसका बोझ उठाया नहीं गया, दरिया से इसका बोझ उठाया नहीं गया। तो बाजू कटे तो रोक ली नजरों पे फौजे शाम, बाजू कटे तो रोक ली नजरों पे फौजे शाम, खाली जरी का एक भी हमला नहीं गया,
खाली जरी का एक भी हमला नहीं किया। ये शेर बहुत नाजुक है, मुलाहिजा फरमाइए, हो सकता है कोई नया रुख हो कि बाजू कटे तो रोक ली नजरों पे फौजे शाम, खाली जरी का एक भी हमला नहीं गया, तो छोड़ा है साथ रूह ने, जाने दो क्या हुआ। देखेंगे हुजूर, छोड़ा है साथ रूह ने, जाने दो क्या हुआ। अब्बास फिर भी छोड़ के दरिया नहीं गया। छोड़ा है साथ रूह ने, जाने दो क्या हुआ। अब्बास फिर भी छोड़ के दरिया नहीं गया। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए कि ये दिल नहीं है, ये है अज़ा खाने हुसैन। देखेंगे खास तौर से, ये दिल नहीं है, ये है अज़ा खाने हुसैन। फर्शे अज़ा यहाँ का समेटा नहीं गया। फर्शे अज़ा यहाँ का समेटा नहीं गया। फर्शे अज़ा यहाँ का समेटा नहीं गया। करते रहे हैं शुक्र का सजदा हुसैन भी, करते रहे हैं शुक्र का सजदा हुसैन भी, जब तक के जुल्म सब्र से घबरा नहीं गया। जब तक के जुल्म सब्र से घबरा नहीं गया। तो वो पाक नस्ल हो नहीं सकती कभी फहीम, वो पाक नस्ल हो नहीं सकती कभी फहीम, परचम जरी का जिससे उठाया नहीं गया। परचम जरी का जिससे उठाया नहीं गया। अब मिसरे पे मुलाहिजा फरमा लें, शेर की अक्स है पर्दे के बाहर, आईना पर्दे में है। कारवां पर्दे के बाहर, रहनुमा पर्दे में है। कारवां पर्दे से बाहर, पूरा कारवां। जी जी, नारे सलवात। मुलाहिजा फरमाए कि अक्स है पर्दे के बाहर, आईना पर्दे में है। एक सूरज अर्श पर है, दूसरा पर्दे में है। क्या कहना है? एक सूरज अर्श पर है, दूसरा पर्दे भाई में है। मतला मुकर्रर, क्या कहना है? अर्श पर है, दूसरा पर्दे में है। बेहतरीन मतला कहा है। अक्स है पर्दे के बाहर, आईना पर्दे में है। अक्स है पर्दे के बाहर, आईना पर्दे में। अक्स है पर्दे के बाहर, आईना पर्दे में है। एक सूरज अर्श पर है, दूसरा पर्दे में है। एक सूरज अर्श पर है, दूसरा पर्दे में है। अस्करी का चांद इब्ने मुर्तज़ा पर्दे में है। अस्करी का चांद इब्ने मुर्तज़ा पर्दे में है। सारी दुनिया जान ले रब की रज़ा पर्दे में है। सब सारी दुनिया जान ले रब की रज़ा पर्दे में है। सारी दुनिया जान ले रब की रज़ा पर्दे में है। तो तूने देखा ही नहीं गुलशन में नरजिस का गुलाब, तूने देखा ही नहीं गुलशन में नरजिस का गुलाब, इसलिए बुलबुल तुम्हारी हर अदा पर्दे में है। इसलिए बुलबुल तुम्हारी हर अदा पर्दे में है। इसलिए बुलबुल तुम्हारी हर अदा पर्दे में है। तो कातिले ज़हरा का लेगा आके पहले इंतकाम, कातिले ज़हरा का लेगा आके पहले इंतकाम। हम गरीबों के दिलों का आसरा पर्दे में है। क्या कहना है? हम गरीबों के दिलों का आसरा पर्दे में है। कातिले ज़हरा का लेगा आके पहले इंतकाम। हम गरीबों के दिलों का आसरा पर्दे में है। ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए कि वो तो बस मुख्तार ने हल्की झलक दिखलाई थी। वो तो बस मुख्तार ने हल्की झलक दिखलाई थी। गासिबाने बागे ज़हरा की क़ज़ा पर्दे में है। गासिबाने बागे ज़हरा की क़ज़ा पर्दे में है। और जिसकी हल्की सी ज़िया दुनिया को रोशन कर गई। देखेंगे ख़ास तौर से, जिसकी हल्की सी ज़िया दुनिया को रोशन कर गई। चांद नरजिस का अभी ठहरा हुआ पर्दे में है। चांद नरजिस का अभी ठहरा जिसकी हुआ हल्की पर्दे सी में। ज़िया, जिसकी हल्की सी ज़िया दुनिया को रोशन कर गई। चांद नरजिस का अभी ठहरा हुआ पर्दे में है। मुलाहिजा फरमाए शेर की एक ही तस्वीर में देखेंगे सब 11 सिफात। एक ही तस्वीर में देखेंगे सब 11 सिफात। फातिमा के नूर का वो आईना पर्दे में है। फातिमा के नूर का वो आईना पर्दे में है। एक ही तस्वीर में देखेंगे सब 11 सिफात। फातिमा के नूर का वो आईना पर्दे में है। तो खाने काबा से फूटी जो किरण खुर्शीद की। देखेंगे खास तौर से, खाने काबा से फूटी जो किरण खुर्शीद की। सिलसिला दर सिलसिला उसकी ज़िया पर्दे में है। सिलसिला दर सिलसिला उसकी ज़िया पर्दे में है। सिलसिला दर सिलसिला उसकी ज़िया पर्दे में है। तो आ नहीं सकता कभी भी आयते कुरान पे हर्फ।
आ नहीं सकता कभी भी आयते कुरान पे हर्फ, बाए बिस्मिल्लाह का एक तर्जुमा पर्दे में है। बहुत अच्छा है। आ नहीं सकता कभी भी आयते कुरान पे हर्फ, आ नहीं सकता कभी भी आयते कुरान पे हर्फ, बाए बिस्मिल्लाह का एक तर्जुमा पर्दे में है। तो ज़ायरीन शाह भूखे मर नहीं सकते कभी, ज़ायरीन शाह भूखे मर नहीं सकते कभी, महरे ज़हरा की कसम इनकी ग़िज़ा पर्दे में है। महरे ज़हरा की कसम इनकी ग़िज़ा पर्दे में है। ज़ायरीन शाह भूखे मर नहीं सकते कभी, महरे ज़हरा की कसम इनकी ग़िज़ा पर्दे में है। ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि आये ततहीर ने ऐसा किया आकर हिसार, आये ततहीर ने आकर किया ऐसा हिसार, पंजतन के बीच नूरे फातिमा पर्दे में है। क्या कहना है, बेपनाह शेर है। वाह 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 वाह। आये ततहीर ने आकर किया ऐसा हिसार, आयते ततहीर ने आकर किया ऐसा हिसार, आये ततहीर ने आकर किया ऐसा हिसार, पंजतन के बीच नूरे फातिमा पर्दे में है। पंजतन के बीच नूरे फातिमा पर्दे में है। ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए खास तौर से। क्या कहना भाई, आये ततहीर ने आकर किया ऐसा हिसार, आये ततहीर ने आकर किया ऐसा हिसार, पंजतन के बीच नूरे फातिमा पर्दे में है। पंजतन के बीच नूरे फातिमा पर्दे में है। आये ततहीर ने आकर किया ऐसा हिसार, पंजतन के तारुफ बता रहा है। क्या कहना है, दलील तारुफ है इसकी। वाह 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 वाह। आये ततहीर ने आकर किया ऐसा हिसार, पंजतन के बीच नूरे फातिमा पर्दे में है। ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए, इंशाअल्लाह महसूस होंगे कि इस तरह सरवर ने बदला है निज़ामे ज़िंदगी, इस तरह सरवर ने बदला है निज़ामे ज़िंदगी। 14 सदियां हो गई हुर की खता पर्दे में है, 14 सदियां हो गई हुर की खता पर्दे में है। इस तरह सरवर ने बदला है निज़ामे ज़िंदगी, 14 सदियां हो गई हुर की खता पर्दे में है। फर्श मजलिस का तेरे घर में बिछाऊंगी यजीद, देखेंगे खास तौर से जनाब ज़ैनब के हवाले से। फर्श मजलिस का तेरे घर में बिछाऊंगी यजीद, तू ये समझा है कि अब करबो बला पर्दे में है, तू ये समझा है कि अब करबो बला पर्दे में है। अब ये भी मुलाहिज़ा फरमाए, शेर थोड़ा सा इस्लाही है, ख़ास तौर से देखेंगे कि ये भी बनता जा रहा है कौम का अपने मिजाज। देखेंगे खास तौर से हुजूर, ये भी बनता जा रहा है कौम का अपने मिजाज, बेटियां हैं सर खुले और अहलिया पर्दे में है, बेटियां हैं सर खुले। क्या कहना है भाई, प्यारा शेर है, दाद मिलना चाहिए। वाह वाह वाह। अगर काफिया नून गुन्ना का होता तो माँ आता। क्या कहना है, ये भी बनता जा रहा है कौम का अपने मिजाज, बेहतरीन तज्जिया शेर पेश किया है भाई। वाह। ये भी बनता जा रहा है कौम का अपने मिजाज, बेटियां हैं सर खुले और अहलिया पर्दे में है, बेटियां हैं सर खुले और अहलिया पर्दे में है, बेटियां हैं सर खुले और अहलिया पर्दे में है। ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए, एक हकीकत है कि शेर का मफहूम बतलाता है शायर का मिजाज, शेर का मफहूम बतलाता है शायर का मिजाज, पढ़ने वाला सामने जिसने लिखा पर्दे में है। भाई क्या कहना है भाई, जवाब नहीं। वाह 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 वाह। पढ़ने वाला सामने जिसने लिखा पढ़ने में है। हाँ भाई, दोनों मुसलसल पढ़िए शेर। वाह 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 वाह। ये भी बनता जा रहा है कौम का अपने मिजाज। ये भी बनता जा रहा है कौम का अपने मिजाज, ये भी बनता जा रहा है कौम का अपने मिजाज, बेटियां हैं सर खुले और अहलिया पर्दे में है। और शेर का मफहूम बतलाता है शायर का मिजाज, शेर का मफहूम बतलाता है शायर का मिजाज, शेर का मफहूम बतलाता है शायर का मिजाज, पढ़ने वाला सामने जिसने लिखा पर्दे में है, पढ़ने वाला सामने जिसने लिखा पर्दे में है। मक्ता मुलाजा फरमा ले कि जिसकी चौखट से वफा की भीख मिलती है फहीम,
जिसकी चौखट से वफा की भीख मिलती है फहीम, एक है करबो बला में, दूसरा पर्दे में है। क्या कहना, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। बेहतरीन। मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि इनके पढ़ने की दाद दूं या आपके सुनने की। बेहतरीन सुन रहे हैं आप माशाल्लाह। और जब भी जाइए थोड़े थोड़े करके किस्तों में जाइए, ताकि ये पता चल सके कि ये होलसेल ऑफर नहीं है। माशाल्लाह, सलामत रहें आप। बेहतरीन समातों के दरमियान बहुत उम्दा, थोड़ा थोड़ा आप क़ुर्बत हासिल कर लें। ये रात तक़र्रुब की रात है, क़ुर्बत की रात है। अपने ज़माने के इमाम की मिदहत से भी तक़र्रुब हासिल करके आप अपने क़ुर्बत का थोड़ा थोड़ा पता दे दें। थोड़ा सा अपनी जगह अगर छोड़ के थोड़ा सा आगे आएँ तो पीछे वालों को आपको छोड़ी हुई जगह मिलेगी, और जो पीछे दूसरों के लिए छोड़ेगा आगे उसके लिए छोड़ी हुई मिलेगी। ये हमेशा याद रखिए, जो अपनों के लिए पीछे ज़मीन छोड़ के चलेंगे आगे उन्हें छोड़ी हुई ज़मीन ज़रूर मिलेगी, वरना फिर छेड़ी हुई ज़मीन के चक्कर में चिड़े रहिएगा। मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ कि आप इंशाअल्लाह आपकी समातें जवानियों उनकी पलटेंगी और आप ज़रूर बेदार होंगे। और ये भी बनता जा रहा है कौम का अब ये मिजाज, बेटियां पर्दे में है, बेटियां पर्दे के बाहर, अहलिया पर्दे में है। जब इन्होंने अहलिया की बात की तो मुझे 32 बरस पहले वाले खुर्शीद हल्लौरी याद आ गए, जिन्होंने कभी कुछ फिल्मिस्तान में लिख के दिया था। तो फिल्मिस्तान का वो लिखा मुंबई की एक टाकीज़ में गूंज रहा था, जिसका नाम था मिनरवा। मरहूम मासूम आज़मी साहब ने, अबूज़र किंतूरी साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, स्टेज भी जानता होगा, बहुत कद्दावर शायर मासूम आज़मी गुजरे हैं और बहुत ही ऐने जवानी में दुनिया को खैरबाद कहा, वरना अदब के गेसू संवारने वाला, अपने असर का एक ऐसा शायर जो हर सिनफ़े अदब से खिराज हासिल करता था। वो मासूम आज़मी ने अपने 4 मिसरों में कहा था कि साबित कदमी है कि कदम गाड़ दिया है, साबित कदमी है कि कदम गाड़ दिया है, तारीख के सीने में कलम गाड़ दिया है। साबित कदमी है कि कदम गाड़ दिया है, तारीख के सीने में कलम गाड़ दिया है। अब झुक नहीं सकता कभी अब्बास शब्बीर का परचम, अब्बास ने हर दिल में अलम गाड़ दिया है। साबित जिंदाबाद, सलामत रहें आप। मेरे इस शेर का अजर आपके नाम आलमाल में लिखा जाए, मगर इस शर्त के साथ कि आप छोड़ के न जाएं। जो बाहर हैं वो भी चले आएं, कम से कम ये दीवारें बताएंगी कि कुछ लोग बाहर टहल रहे हैं और कुछ लोग साहिब गैबत को सुनने के लिए पर्दे में हैं। तो जाहिर है कि आप भी उनके लिए पर्दे में हैं जो बाहर टहल रहे हैं। तो माशाअल्लाह आप बापर्दा समाते भी लिए हुए हैं। तो जनाबे मासूम आज़मी साहब ने भी अहलिया बड़े प्यारे अंदाज में इस्तेमाल करते हुए, बम्बई में मैं खुद उसमें मौजूद रहा महफिल में, खुदा क्या है नबी जाने, नबी क्या है खुदा जाने, ये मिसरा था। उस पर मासूम आज़मी ने अपने तशबीब में कहा था कि मिनरवा से परिंदे का टिकट ले आए वो, लेकिन मिनरवा से परिंदे का टिकट ले आए वो, लेकिन जो पूछा बहरे मस्जिद क्या है, बोले अहलिया जाने। जो पूछा बहरे मस्जिद क्या है, बोले अहलिया जाने। तो जाहिर है कि अब मैं आपकी समातों के हवाले एक ऐसे शायर को करना चाहता हूँ कि जो आपकी लतीफ़ समातों को भी मुतरन्निम कर सके, क्योंकि समातों की लताफत ही असल लुत्फ़ देती है। और उस लुत्फ़ की लताफत के लिए एक लतीफ़ तरन्नुम का शायर आपके हवाले करना चाहता हूँ, जिसकी शहनशाही उसकी नौजवानी से कायम और दायम है, और उस शहनशाह को शहनशाह मिर्ज़ापुरी कहते हैं। मैं गुजारिश गुजार हूँ शहनशाह मिर्ज़ापुरी साहब से, आप हजरात साबिक़ की तरह इस बार भी बुलंद तरीन सलवात पढ़ लें। हज़रात आप सबको जश्न मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं ममनून व मशकूर हूँ मोहतरम का कि मुझे आवाज़ दिया।
चूँकि मैंने कह भी दिया था कि मुझे बाहर जाना है, लिहाजा मैं बिला किसी तमहीद हुक्म की तामील में एक मतला और कुछ शेर पहले पेश कर देता हूँ, उसके बाद कलाम पेश करता हूँ। मिसरा था कि जिसको खालिक ने चुना है वही मौला होगा। अबूज़र भाई अपने इलाके का ख्याल रखिएगा और अपने बुज़ुर्गों से, चूँकि मैं यहाँ बचपन से आता रहा हूँ, मैं मिजाज जानता हूँ, पेश कर रहा हूँ, दुआएं चाहता हूँ। अच्छा मुलाज़ा फरमाएं, मिसरा जहन में रहे कि जिसको खालिक ने चुना है वही मौला होगा। एक बावत बुलंद सलवात पढ़ दें, फिर मैं पेश करता हूँ। मतलब पेश कर रहा हूँ। कितना पुरकैफ वो मंज़र वो नज़ारा होगा। ये मतलब पेश कर रहा हूँ, फरमाए कितना पुरकैफ वो मंज़र वो नज़ारा होगा। कितना पुरकैफ वो मंज़र वो नज़ारा होगा। जब रिसालत ने इमामत को उठाया होगा। जब रिसालत ने इमामत को उठाया होगा। कितना पुरकैफ वो मंज़र वो नज़ारा होगा। दो शेर के लिए मैं दो तीन मतले सुना रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाया कितना पुरकैफ वो मंज़र वो नज़ारा होगा। क्यों बहू है तारे करार का तो रखा ससुराल। हूँ बहू है तारे करार का हमला होगा। हूँ बहू है होगा। हूँ बहू है तारे करार का लहजा होगा। अरे जिस घड़ी शाम में ज़ैनब तेरा खुतबा होगा। जिस घड़ी शाम में ज़ैनब तेरा खुतबा होगा। कितना पुरकैफ वो मंज़र वो नज़ारा होगा। नवा खान यहाँ बैठे हुए हैं और मातमदार बैठे हुए हैं। अब शेर नज़्म कराऊं, अगर आप तक पहुंचे दुआ से नवाजिएगा। कि वो किसी के भी उठाने से नहीं उठ सकता। वो किसी के भी उठाने से नहीं उठ सकता। और जिसको ज़हरा ने निगाहों से गिराया होगा। जिसको ज़हरा ने निगाहों, माइक की आवाज बढ़ा दो भैया जरा सा, सब मिल के बोले, दुआएं चाहता हूं। अबूज़र भाई कितना पुरकैफ वो मंज़र वो नज़ारा होगा। वो किसी के भी उठाने से नहीं उठ सकता। जिसको ज़हरा ने निगाहों से गिराया होगा। कितना पुरकैफ वो मंज़र वो नज़ारा होगा। और मैं यहाँ की दुआएं पा करके पूरी दुनिया में टहल रहा हूँ। मैं शेर नज़्म कर रहा हूँ। जैसा दुआएं चाहता हूँ कि मत उलझ फातिमा
जहरा के पिसर से जालिम, मत उलझ फातिमा जहरा के पिसर से जालिम, और वरना खुद तेरा मुखालिफ तेरा बेटा होगा, वरना खुद तेरा मुखालिफ तेरा बेटा। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना। या अली, देखिए इसको कहते हैं अता दर आता। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि बहलोल आज भी जन्नत नहीं बेच रहा है? बहरहाल जाहिर सी बात है, बाप का साया बाप का साया होता है। वो लिपट के रोने लगे। खुदा इनको सब्र अता करे, इनकी सलामती के लिए सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये शेर फिर आता हो। कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा, कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। मत उलझ फातिमा जहरा के पिसर से जालिम, मत उलझ फातिमा जहरा के पिसर से जालिम, और वरना खुद तेरा मुखालिफ तेरा बेटा होगा, वरना खुद तेरा मुखालिफ तेरा बेटा होगा। कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। और जरा जैसे चाहे सुन ले, मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे ही पढ़ूंगा। फरमाया जरा शेर पेश कर रहा हूँ कि नाम रख लेने से सच्चा तो नहीं बन सकता, अरे नाम रख लेने से सच्चा तो नहीं बन सकता, और जो नबी का ना हुआ क्या वो हमारा होगा। कैफ वो कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। अस्करी भाई, नाम रख लेने से सच्चा तो नहीं बन सकता, और जो नबी का न हुआ क्या वो हमारा होगा, जो नबी का ना हुआ क्या वो हमारा होगा। कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। और हज़रात काफिया की दाद चाहता हूँ, मुन्ने भाई मुखातिब हो जाइए, दुआएं चाहता हूँ। शाने साहब बतौर खास पेश कर रहा हूँ। फरमाया सरकार सुनिएगा, कितना बतौर खास पेश करो। कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा, कि बुग़्ज़ हैदर में तुम्हें इतनी जलन है मुझसे। भाई अमहट में पढ़ रहा हूँ हैदर भाई, बुग़्ज़ हैदर में तुम्हें इतनी जलन है मुझसे, अरे मैं तबल्ला भी करूंगा तो तबल्ला होगा, मैं तबल्ला भी करूंगा। जीते रहिए, सलामत रहिए बाबा। मिलकर बोले सहारा दे आपका भाई जिंदाबाद। कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा, मिल के सारे नारे हैदरी। सलामत रहे भाई जिंदाबाद।
कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा, कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। जब रिसालत ने इमामत को उठाया होगा, जब रिसालत ने इमामत को उठाया होगा। और ज़रा ये भी शेर बड़ी जिम्मेदारी से इस फख्र के साथ पढ़ रहा हूँ कि यहाँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इस मंजिल ने, इस जहान ने, इस मकाम ने। चाचा दुआएं चाहता हूँ, फरमाएं बतौर खास। कितना पुरकैफ, सलवात पढ़ें हज़रात, जल्दी 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 आइए। चचा का परचम आज भी लहरा रहा है। आपका बार बार चचा चचा कहना यह बात की दलील है कि ऐसे ही नबी चचा चचा। शुक्रिया साहब। नारे सलवात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। फरमाए कि कब्र में रख के न रोवो मुझे दुनिया वालों। दूसरा मिसरा बतौर खास क्या चाहता हूँ, कब्र में रख के न रोवो मुझे दुनिया वालों। अरे आज की शब मेरे घर में मेरा मौला होगा, आज की शब मेरे घर में मेरा मौला होगा, मेरा मौला हो। जियो जिंदाबाद, सलामत रहे या अली अली साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आप पढ़ते जाइए। कैफियत का शेर है। यार सब बोले शरीक हो जाए, इमाम के सिपाही है। कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा, जब रिसालत ने इमामत को उठाया होगा, जब रिसालत ने इमामत को उठाया होगा। कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा, कब्र में रख के न रो मुझे दुनिया वालों, कब्र में रख के न रोवो मुझे दुनिया वालों। आज की शब मेरे घर में मेरा मौला होगा, आज की शब मेरे घर में मेरा मौला होगा। कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। और हज़रात आपकी मोहब्बतों का साया मेरे ऊपर सलामत रहे। मैं भी हैदराबाद में तकरीबन 2 घंटे पढ़ के आ रहा हूँ और मुझे ये पसलियाँ दर्द कर रही हैं और अगला प्रोग्राम भी पढ़ना है। लेकिन इस शेर के सदक़े में सरकार इस शेर पे दुआएं चाहता हूँ और बिलखुसूस नौजवानों की खिदमत पेश कर रहा हूँ, जितनी भी नौजवान हैं मुलाज़ा फरमा लें। कितना कल्बे साहब, कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। सरकार पेश कर मुलाज़ा फरमाए कि चांद क्यों इतना हंसी है, ये खबर है मुझको। चांद क्यों इतना हंसी है, ये खबर है मुझको। अरे उसने अकबर को बड़े गौर से देखा होगा, उसने अकबर को बड़े गौर। हक अदा कर दिया आप हज़रात, दुआ उससे नवाज दीजिए। क्या कहें? हक अदा कर दिया अगर शेर है तो। या अली
सर हिलाने वाले भी बोले। क्या कहना है? कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा, कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। चांद क्यों इतना हंसी है ये खबर है मुझको, अरे उसने अकबर को बड़े गौर से देखा होगा, उसने अकबर को बड़े गौर से देखा होगा। कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा, कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। और दुआया इश्क़ फरमाए, कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा कि मैं भिखारी था शहंशाह बनाया तुमने, मैं भिखारी था शहंशाह बनाया तुमने, अरे मेरी किस्मत की तरह कौन दोबारा होगा, मेरी किस्मत की तरह कौन दोबारा। भाई सुभान अल्लाह, इन्होंने अभी इकरार किया कि आपके सामने मैं बचपने से आया हूं, इसका मतलब ये शहजादे थे, शहंशाह आपकी आंखों के सामने बने हैं। तो सलामत रहे आपकी शहंशाही कैफ वो मंजर वो नजारा होगा। चांद क्यों इतना हंसी है ये खबर है मुझको, उसने अकबर को बड़े गौर से देखा होगा। मेरा मौला होगा। कितना पुर सलवात पर हजरात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा कि कब्र में रख के न रोवो मुझे दुनिया वालों, कब्र में रख के न रोवो मुझे दुनिया वालों, आज की शब मेरे घर में मेरा मौला होगा, आज की शब मेरे घर में। हर दिल की तर्जुमानी फरमाई है, वाह वाह वाह, एक एक दिल की तर्जुमानी है ये, वाह 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 वाह। इतना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। मत उलझ फातिमा ज़हरा के पिसर से जालिम, वरना खुद तेरा मुखालिफ तेरा बेटा होगा, वरना खुद तेरा मुखालिफ तेरा बेटा। मैं तवल्ला जो करूंगा। आहा, कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा, कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। क्या बुग़्ज़ हैदर से तुम्हें इतनी जलन है मुझसे, बुग़्ज़ हैदर से तुम्हें इतनी जलन है मुझसे, अरे हम तवल्ला भी
भी करेंगे तो तवल्ला होगा, हम तवल्ला भी करेंगे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। कब्र में रख के न रोवो मुझे दुनिया वालों, आज की शब मेरे घर में मेरा मौला होगा, आज की शब मेरे घर में मेरा मौला होगा। कितना पुरकैफ वो मंजर वो नजारा होगा। क्या कहना, इस शेर के बाद लगा कि मैं बंबई से आया ही नहीं, बंबई यहीं आ गई है। बहुत उम्दा, क्या कहना, वाह। शुक्रिया जरा नवाजी। हजरात दो चार शेर तहत में भी उसमें तरह पे भी सुन लिया हजरात, और चाहता हूँ फरमाएं एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाए कि पूछते हो क्यों तुम्हारा रहनुमा पर्दे में है, पूछते हो क्यों तुम्हारा रहनुमा पर्दे में है। अक्ल के अंधों से पूछो क्यों खुदा पर्दे में है। रहनुमा भाई बड़ा इस्तदलाली में शेर है। पूछते हो क्यों हमारा रहनुमा पर्दे में है, पूछते हो क्यों तुम्हारा रहनुमा पर्दे में है। खावर भाई अक्ल के अंधों से पूछो क्यों खुदा पर्दे में है। बताओ खास पेश कर रहा हूं। पूछते हो क्यों तुम्हारा रहनुमा पर्दे में है। मौलाना फरमाए कि सिलसिला जारी है जाने का शबे मेराज पर, सिलसिला जारी है जाने का शबे मेराज पर। अरे एक जाकर आ चुका है दूसरा पर्दे, एक जाकर आ चुका है दूसरा पर्दे में है। वाह 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 वाह। जारी है जाने का शबे मेराज पर, एक जाकर आ चुका है दूसरा पर्दे में है। बताओ खास हजरात, पूछते हो क्यों तुम्हारा रहनुमा पर्दे में है। उस्ताद दुआएं चाहता हूँ, आप सबसे दुआएं चाहता हूँ हजरात कि पूरा कुरान पढ़ लो तुम मानी बता सकते नहीं। पूरा कुरान पढ़ लो तुम मानी बता सकते नहीं। अरे क्योंकि कुरान मुबीन का तर्जुमा पर्दे में है। क्योंकि भाई बहुत अच्छा
है क्योंकि कुरान मुबीन का तर्जुमा पर्दे में है। क्यों हाँ 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 कुरान मुबीन का तर्जुमा पर्दे में है, क्योंकि कुरान मुबीन का तर्जुमा पर्दे में है कि खूब बदला ले लिया मुख्तार ने माना मगर, खूब बदला ले लिया मुख्तार ने माना मगर, जालिमों इससे कहीं बढ़कर सजा पर्दे में। भाई एक एक शेर लाजवाब, वाह 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 वाह, इससे कहीं बढ़ कर सजा पर्दे में है, खूब बदला ले लिया मुख्तार ने माना मगर, जालिमों इससे कहीं बढ़कर सजा पर्दे में है कि जिंदगी की शाम हो जा ए मेरी मुमकिन नहीं, जिंदगी की शाम हो जा ए मेरी मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी का आसरा पर्दे में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरी जिंदगी का आसरा पर्दे में है, जिंदगी की शाम हो जा ए मेरी मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी का आसरा सहरे। सरकार आप चाय पी लीजिए और मुझे दवाएं दे दीजिए। हाँ पी लीजिए पी लीजिए। पूछते हो क्यों तुम्हारा रख दिया है रहनुमा पर्दे में है, कि मुंतज़िर उस दिन के हैं ईसा नबी अल्लाह भी, मुंतज़िर उस दिन के हैं, बताओ जरा खास, मुंतज़िर उस दिन के हैं ईसा नबी अल्लाह भी। अरे कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा पर्दे में है, बेहतरीन तस्वीर है। रहनुमा। शुक्रिया साहब, जरा नवाजी, इल्तमास से दुआ बादबन सलवात बा मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखे माशाअल्लाह, और चाय भी हम सब ने पर्दे में रख दी थी इस वक्त। हाँ आप जाए नहीं, खुदा की कसम जो शहंशाह साहब ने किया है और इसके बाद अब जो होने जा रहा है, आप हजरात का होना बहुत ज़रूरी है। ये जाने वाले ज़रूर अपनी ज़रूरतों को पूरा करके आएंगे, क्योंकि इन्होंने सीखा है कि इमाम कायम और इमाम हुज्जत और बक़ियतुल्लाह के जश्न का कम से कम आखिरी वक्त अरीज़ा लिखने का वक्त है। तो कम से कम अरीज़ा लिखने के वक्त तक आप होंगे, और मुझे यकीन है कि यह महफिल अपने कमाल को पहुँचेगी, इसलिए कि कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा पर्दे में है। तो इंशाअल्लाह ये कारवां पर्दे के बाहर बैठा होगा। बहुत बड़ी बात खुदा की कसम मुझे याद आ रही थी जब इन्होंने कहा कि हम तवल्ला भी करेंगे तो तबर्रा होगा। मैं सोचता रहा, मैं अजमेर शरीफ तक का सफ़र करके चला गया, और उस वक्त कि जब बरेली शरीफ के कुछ शरपसंदों ने जाकर अजमेर शरीफ में कोई नारा बुलंद किया, वहाँ की फिदा मखदूश हुई। मुकद्दर माहौल में वहाँ के सज्जादा नशीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुनेंगे आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ का सबसे बड़ा सज्जादा नशीन
वो बैठ के कहता है हम इन्हें इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ख्वाजा साहब सादात हैं, यानी हमजा की औलाद हैं। हमजा की औलाद के आंगन में हिंदा के बेटे का नारा नहीं लग सकता। इतनी बड़ी बड़ी बातें खुदा की कसम कौन कह सकता है सिवाय उसके कि जिसके दिल में हुब्बे अली है। और आखिर में जाते जाते शहंशाह साहब ने जनाबे ईसा का हवाला दिया तो समझ में आया ईसा क्या हैं? मुंतज़िर हैं। इमाम क्या है? मुंतज़र है। सबने कहा इमाम आएंगे तो इमाम होंगे, ईसा मामूम होंगे। लेकिन अली के दर का शायर जब तशबीह पेश करता है और तमसील की दुनिया में आता है तो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समाअत करें। खुदा की कसम आप देखें, काबा किबला है, काबे से पहले किबला था बैतुल मुक़द्दस, वो बैतुल मुक़द्दस कहलाता था। लेकिन जब उससे किबला का मनसब ले लिया गया तो वो मस्जिद रह गई। अरे कहाँ सुन रहे हैं आप? जब लक़ब ले लिया तो मस्जिद रह गई। इसका मतलब ये है कि बैतुल मुक़द्दस ऐसी मस्जिद है कि अगर किबला बना दिया जाए तो किबला है, हटा लिया जाए तो मस्जिद है। अब समझ में आया इमाम और ईसा में यही फर्क है। इमाम काबा है, ईसा मस्जिद है। अब मैं नहीं जानता, मैं निजामत नहीं कर सकता फिर इसके बाद, इस जुमले के बाद अगर ये रायगा चला गया इमाम काबा है, ईसा मस्जिद है, अगर ये बात जहन में है तो अब मेरे साथ इस वक्त 2025 में अलीपुर कर्नाटक से दोशीपुरा बनारस तक, नौगावा सादात की मगरबी यूपी से लेकर बनारस के मशरकी यूपी तक जब देवल शाहिदी ने कदम रखा तो तमसील की दुनिया में एक शेर पढ़ा और वो शेर सुनाकर मैं आपके हवाले शायर कर दूंगा। उस शेर में देवल शाहिदी ने कहा कि तीरों को रोकती रही उठ उठ के मस्जिदें, तीरों को रोकती रही उठ उठ के मस्जिदें, काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से। अब हटवा लो, अब इसके बाद क्या रह जाती है निजामत। उठ उठ के तीरों को रोकती रही उठ उठ के मस्जिदें, काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से, काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से। आइए हजरात, शहंशाह मिर्ज़ापुरी एक ऐसा तखल्लुस है कि बार बार शहंशाह शहंशाह शहंशाह, और जाहिर है कि शहंशाहियत हाथ आती है तो डायरेक्ट नहीं आती। पहले इंसान शहजादा होता है, फिर बादशाह होता है, फिर शहंशाह होता है, और उसके बाद हुक्मरानी का मनसब ख़त्म हो जाता है। और जब यह मनसब ख़त्म हो जाए तो उस मनसब को और बुलंदी तक लाने के लिए सिवाय मासूम मनसब के कुछ नहीं रह जाता। इसलिए मगरबी दुनिया से एक मासूम भी हमारी फहरिस्त में है। अगर शहंशाह बैठेगा तो मासूम उठेगा। मेरी मुराद है जनाबे मासूम अमरोही साहब, देहलवी साहब से के तशरीफ लाएं। आप हजरात बुलंद तरीन नारे सलवात से उन्हें समाअत फरमाएं। हाज़रीन महफिल, सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप लोगों को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इजाज़त है सरकार, 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ। यहीं की अमानत थी आपकी, यहीं से हाजिर करता हूँ कि कितना अजीब दौर है, कैसा ये वक्त है। सुनेंगे, कितना अजीब दौर है, कैसा ये वक्त है, कैसा ये वक्त है। बैठा है भाई, भाई से मुंह अपना मोड़कर। सलामत रहे आप। कितना अजीब दौर है, कैसा ये वक्त है। बैठा है भाई, भाई से मुंह अपना मोड़कर, तो हर सिमत चल रही है तशद्दुद की आंधियां। जाए कहां इमाम के दामन को छोड़कर। साले गुज़श्ता का मिसरा। हर सिमत चल रही है तशद्दुद की आंधियां। जाए कहां इमाम के, जाए कहां इमाम के दामन को छोड़कर। 4 मिसरे और पैगाम के तौर पर हाजिर करता हूं। देखेंगे शायद किसी काबिल हो के, या तो
अपने भाई का तुम हक दबाना छोड़ दो। सुनेंगे, या तो अपने भाई का तुम हक दबाना छोड़ दो, या अलम अब्बास गाजी का उठाना छोड़ दो। क्या कहना है भाई का? बहुत शुक्रिया। या तो अपने भाई का तुम हक दबाना छोड़ दो, या अलम अब्बास गाजी का उठाना छोड़ दो। तो फर्शे महफिल पर दिखाओ गर सियासत के हुनर, इससे बेहतर है कि तुम महफिल में आना छोड़ दो। दिखाओ गर सियासत के हुनर, फर्शे महफिल पर दिखाओ गर सियासत के हुनर, इससे बेहतर है कि तुम महफिल में आना छोड़ दो। दूध पढ़िए आप हजरत। भाई क्या कहना है? अंदाज रिमदाना है और अशार रंदाना है। बहुत उम्दा, छील के रख दिया आपने। मिसरा है, कारवां पर्दे के बाहर, रहनुमा पर्दे में है। देखिए, आप थोड़ी हिम्मत बढ़ाते रहेंगे तो हमें भी हौसला मिलेगा। दूध पढ़िए आप हजरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सरकार मतलब हाजिर करता हूँ कि बिल यकीन वैसे ही जिस तरह खुदा पर्दे में है, बिल यकीन वैसे ही जिस तरह खुदा पर्दे में है, चांद जहरा का शबीह मुस्तफा पर्दे में है। वाह। चांद जहरा का शबीह मुस्तफा पर्दे में है। चांद जहरा का शबीह मुस्तफा पर्दे में है। फिर मतलब पढ़ता हूँ, चांद जहरा का शबीह मुस्तफा पर्दे में है। तो पूछते हैं आप मुझसे ये कि क्या पर्दे में है? पूछते हैं आप मुझसे ये कि क्या पर्दे में है? करबला के बाद की ये करबला पर्दे में है। क्या कहना है? वाह 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 वाह। करबला के बाद की, करबला के बाद की, करबला के बाद की, करबला के बाद की, भाई इत्मीनान से फिर करबला के बाद की पूरा शेर करबला पर्दे में है। पूछते हैं आप मुझसे क्या ये कि क्या पर्दे में है? करबला के बाद की एक करबला पर्दे में है। करबला पर्दे में है। यहाँ से शेर हाजिर करता हूँ, करबला के बाद की एक करबला पर्दे में है। तो जिसमें देखेगा जमाना खुद जमाले मुस्तफा, देखेंगे शायद किसी जिसमें देखेगा जमाना, जिसमें देखेगा जमाना खुद जमाले मुस्तफा, रब्बे खालिक की कसम वो आईना पर्दे में है। जिसमें देखेगा जमाना खुद जमाले मुस्तफा, रब्बे खालिक की कसम वो आईना पर्दे में है। सरकार ये शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ, रब्बे खालिक की कसम वो आईना पर्दे में है। तो गर्दिशे दौरा अलग हो मेरा रास्ता छोड़ दे। सुनेंगे, गर्दिशे दौरा अलग हो मेरा रास्ता छोड़ दे, मैं बुलाऊं क्या अभी मौला मेरा पर्दे में है। गर्दिशे दौरा मैं बुलाऊं क्या? क्या लहजा है। मेरा रास्ता छोड़ दे, मैं बुलाऊं क्या अभी मौला मेरा पर्दे में है। मैं बुलाऊं क्या अभी मौला मेरा पर्दे में है। तो गौर कीजिए, गर तो ये एक मौजिज़े से कम नहीं। गौर कीजिए, गर तो ये एक मौजिज़े से कम नहीं। कारवां पर्दे के बाहर, रहनुमा पर्दे में है। कारवां पर्दे के बाहर, रहनुमा पर्दे में है। तो देखना लहराएगा काबे पे गाजी का अलम। देखना लहराएगा काबे पे गाजी का अलम। जो अलम लहराएगा वो बावफा पर्दे में है। जो अलम लहराएगा वो बावफा पर्दे में। तो हम अज़ादारे हुसैन इब्ने अली के वास्ते, हम अज़ादारे हुसैन इब्ने अली के वास्ते वारिसे मिंबर खतीबे करबला पर्दे में है। हम अज़ादारे हुसैन इब्ने अली के वास्ते वारिसे मिंबर खतीबे करबला पर्दे में है। तो जिससे काटे जाएंगे सब दुश्मनाने अहले बैत, जिससे काटे जाएंगे सब दुश्मनाने अहले बैत, वो गिलाफे सब्र ओढ़े असलहा पर्दे में है। वो गिलाफे सब्र ओढ़े असलहा पर्दे में है। दुरूद पढ़िए आप हजरात।
इजाजत है सरकार और पढ़ने की अभी? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दो मतले और दो तीन शेर हाजिर करता हूँ। सिरसी में मिसरा हुआ था, शहीदों चैन से सोते रहो बेदार है ज़ैनब। मतला और दो तीन शेर हाजिर करता हूँ कि कलामे हक को भी इस बात का इकरार है ज़ैनब। कलामे हक को भी इस बात का इकरार है ज़ैनब, जिसे इस्लाम कहते हैं तेरा किरदार है ज़ैनब। कलामे हक को भी इस बात का इकरार है ज़ैनब, जिसे इस्लाम कहते हैं तेरा किरदार है ज़ैनब। तो हुसैनी काफिले की अब अलम बरदार है ज़ैनब। हुसैनी काफिले की अब अलम बरदार है ज़ैनब। शहीदों चैन से सोते रहो बेदार है ज़ैनब। हुसैनी काफिले की अब अलम बरदार है ज़ैनब। शहीदों चैन से सोते रहो बेदार है ज़ैनब। तो असीरी में भी जिसने जुल्म का खैबर हिला डाला, असीरी में भी जिसने जुल्म का खैबर हिला डाला, खुद अपने दौर की वो हैदर कर्रार है ज़ैनब। असीरी में भी जिसने जुल्म का खैबर हिला डाला, खुद अपने दौर की वो हैदर कर्रार है ज़ैनब। सरकार ये शेर बतौर खासा करता हूँ, खुद अपने दौर की वो हैदर कर्रार है ज़ैनब। तो अलियो फातिमा शब्बीरो शब्बर हजरत अब्बास, अलियो फातिमा शब्बीरो शब्बर हजरत अब्बास, ये सब इज्जत करे जिसकी वो इज्जतदार है ज़ैनब। अलियो फातिमा शब्बीरो शब्बर हजरत अब्बास, ये सब इज्जत करे जिसकी वो इज्जतदार है ज़ैनब। दुरूद पढ़िए आप हजरात। एक मतलब और चंद शेर और हाजिर करता हूँ। मतलब हाजिर करता हूँ कि किस तरह आंखों से मेरी ये नजारे जाएंगे, किस तरह आंखों से मेरी ये नजारे जाएंगे, जो दरे शब्बीर पर लम्हे गुजारे जाएंगे। किस तरह आंखों से मेरी ये नजारे जाएंगे, जो दरे शब्बीर पर लम्हे गुजारे जाएंगे। यहाँ से शेर हाजिर करता हूँ, जो दरे शब्बीर पर लम्हे गुजारे जाएंगे। तो खौफ न खाना निशाने मातमे शह ने कहा, खौफ न खाना निशाने मातमे शह ने कहा, साथ में हर गाम पा हम भी तुम्हारे जाएंगे। खौफ न खाना निशाने मातमे शह ने कहा, साथ में हर गाम पा हम भी तुम्हारे जाएंगे। तो मंजिलत अपनी बरोज़े हश्र देखेगा जहां, मंजिलत अपनी बरोज़े हश्र देखेगा जहां, हम दुआए सैयदा कहकर पुकारे जाएंगे। मंजिलत अपनी बरोज़े हश्र देखेगा जहां, हम दुआए सैयदा कहकर पुकारे जाएंगे। तो परचमे अब्बास के साए में होगा काफिला, हम दुआए सैयदा कहकर पुकारे जाएंगे। तो परचमे अब्बास के साए में होगा काफिला, सबसे पहले पांव जन्नत में हमारे जाएंगे। परचमे अब्बास के साए में होगा काफिला, सबसे पहले पांव जन्नत में हमारे जाएंगे। मोहतरम जनाब मासूम अमरोही साहब अपने बसीरत अफरोज़ और पुरनूर कलाम से आप हजरात के क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। हजरात फ़हरिस्त में अभी बहुत से शुअरा हैं और इंशाअल्लाह आप हजरात एक के बाद दीगरे मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। आइए मैं बग़ैर तमहीद के गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वासिफ़ अमरोही साहब से कि वह तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नजरान अक़ीदत पेश करें। जनाब वासिफ़ अमरोही। मोअज़्ज़ज़ सामईन सलाम अलैकुम। सबसे पहले इस बाबरकत जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो ये खाली जगह है अगर इसको थोड़ा सा थोड़ा आप आगे आ जाएंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और शायद ये कमी जो हमारी है ये शायद थोड़ा सा आगे आ जाएं, सिमट के बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा आगे आ जाएंगे तो मैं सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुल्तानपुर के सामाईन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। इम्तिहान मेरा है या आपका, वो फैसला करते हैं। मतला हाजिर करता हूँ, देखिएगा मतला आपके हवाले करता हूँ। कारवां पर्दे के बाहर, रहनुमा पर्दे में है। जाने न जिस अस्करी का महलका पर्दे में है। बहुत आराम से पढ़ूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, शायद आप तक कलाम पहुंचे। बहुत आराम से पढ़ूंगा, सुकून से। जाने न जिस अस्करी का महलका पर्दे में है। हो जाते परवरदिगारे मुस्तफा पर्दे में है। हो जाते परवरदिगारे मुस्तफ़ा पर्दे में है। और ये आपकी अमानत आपके हवाले करता हूँ। तज़मीन देखिएगा कि दोनों ही बेचैन हैं, रब की रज़ा के मुंतज़िर। दोनों, जब तक पूरी दाद नहीं मिलेगी मिसरे पे मैं पढ़ता रहूँगा। दोनों ही बेचैन हैं, रब की रज़ा के मुंतज़िर। कारवां पर्दे के बाहर, रहनुमा पर्दे। क्या कहने? कारवां पर्दे के बाहर, रहनुमा पर्दे में है। उस्ताद ये रदीफ का रुख बदलने की कोशिश की, शायद किसी काबिल हो, देखिएगा। क्योंकि दोनों ही बेचैन हैं, रब की रज़ा के मुंतज़िर। दोनों ही बेचैन हैं, रब की रज़ा के मुंतज़िर। कारवां पर्दे के बाहर, रहनुमा पर्दे में है। कारवां पर्दे के बाहर, रहनुमा पर्दे में है। और शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा। आ नहीं सकते हैं आंसू। अभी तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं सुल्तानपुर में पढ़ रहा हूँ, शायद इस शेर पे एहसास हो। आ नहीं सकते हैं आंसू, आँख में आबास की। मेरा सब्र देखें मैं कितने सुकून से पढ़ रहा हूँ। आ नहीं सकते हैं आंसू, आँख में आबास के। जब तलक हर एक कनीज़े सैयदा पर्दे, जब तलक आ नहीं सकते हैं आंसू, आँख में आस की। आ नहीं सकते हैं आंसू, आँख में आबास की। जब तलक हर एक कनीज़े सैयदा पर्दे में है।
जब तलक हर एक कनीज़े सैयदा पर्दे में है। और शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा कि हाजतें लिख कर अरीज़े में उसे सब भेज दी, हाजतें लिख कर अरीज़े में उसे सब भेज दी। है खबर मुझको मेरा हाजत रवा पर्दे में है खबर मुझको मेरा हाजत रवा पर्दे में है। और यहाँ से एक मतला और चंद अशार हाजिर करता हूँ। बुलंद तरीन नारा सलवात से सहारा दे दीजिए। मतला देखिएगा। हवा के दोष पे दुलदुल सवार आएगा, हवा के दोष पे सवार आएगा, हवा के दोष पे दुलदुल सवार आएगा, वो जानशीन मोहम्मद जरूर आएगा, वो जानशीन। और ये शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा कि नमाज फजर पढ़ाने जनाब ईसा को, नमाज फजर पढ़ाने जनाब ईसा को, सुना है हो जाते परवरदिगार आएगा। भाई मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। सुना है हो जाते चलेगा कोई ना फतवा किसी भी मुफ्ती का, चलेगा कोई ना फतवा किसी भी मुफ्ती का, बनाने ज़हरा का जब वो मज़ार आएगा, हवा के दोष। एक बुलंद तरीन नारा सलवात से सहारा दे दीजिए। एक कलाम जो जिससे मुझे बड़ी पहचान मिली, और सिर्फ एक शेर के लिए कलाम बहुत सुना गया और बहुत इज्जत से नवाजा गया, बीबी ने बहुत नवाजा। सुल्तानपुर में पढ़ता हूँ, शायद यहीं से शायद कामयाबी मिल जाए। मतला हाजिर करता हूँ, देखिएगा। मरहबा दीन की तकदीर बनाने वाले, मरहबा दीन की तकदीर बनाने वाले, तुझको हरगिज़ नहीं
भूलेंगे जमाने वाले तुझको हरगिज नहीं भूलेंगे जमाने वाले। और शेर देखिएगा, हाजिर करता हूँ कि देख ले दुनिया अदा करते हैं ज़ेरे खंजर, देख ले दुनिया अदा करते हैं ज़ेरे खंजर, सजदाए शुक्र मोहम्मद के घराने वाले, सजदाए शुक्र मोहम्मद के घराने वाले। यूं तो दुनिया में मुसलमान थे हजारों लेकिन कि यूं तो दुनिया में मुसलमान थे हजारों लेकिन थे 72 ही फ़कत दीन बचाने वाले, थे 72 ही। और ये आज़ादारी का मरकज़ सुल्तानपुर, किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं है। शब आशूर का मंजर पेश नज़र रखिएगा। शेर देखिएगा, कबला हाजिर करता हूँ, सिर्फ 3 शेर की सहमत है, हाजिर करता हूँ, देखिएगा। सजदाए शुक्र मोहम्मद के घराने वाले, तेरे परवाने तेरी लौ को ना छोड़ेंगे कभी, तेरे परवाने तेरी लौ को न छोड़ेंगे कभी। ए चरागे शबे आशूर बुझाने वाले। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरे परवाने तेरी लौ को न छोड़ेंगे कभी, ए चरागे शबे आशूर बुझाने वाले, ए चरागे शबे। और ये मक्ता हाजिर करता हूँ। लोग तरह से अपना अकीदा है कि किस तरह से मौला से हम कहें कि हमें करबला बुला लीजिए, शायद कोई नया रूह को हाजिर करता हूँ, देखिएगा। ए चरागे शबे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मुलाहिजा फरमाइए। आशूर बुझाने वाले अपने वासिफ को भी अब जल्दी बुला ले मौला, अपने वासिफ को भी अब जल्द बुला ले मौला।
करबलाए ने मज़ाहिर को बुलाने क्या कहने, बहुत अच्छा है। अपने वासिफ को भी अब जल्द बुला ले मौला, करबलाए ने मज़ाहिर को बुलाने वाले, करबलाए जनाब वासिफ साहब अपने कलाम से आप हजरात को नवाज रहे थे। हजरात, फहरिस्त में शुअरा का नाम तो अभी बहरहाल कई अदद है, लेकिन फ़िलहाल वो शुअरा स्टेज पे नहीं आए हैं। मैं मुंतज़मीन से गुजारिश करूँगा कि शुअरा को स्टेज पे लाने पर की ज़हमत फरमाएँ। जनाब वासिफ साहब मदह मौला कर रहे थे, और ये मदह मौला का शरफ़ हर किसी को नसीब नहीं होता है। मुक़द्दर वालों को ये शरफ़ मिलता है कि वो अहले बैत की मदह करें। मदह सिखलाई है दोज़ख से अमा बख्शी है, मदह सिखलाई है दोज़ख से अमा बख्शी है, फ़िक्र में ज़िक्र शहे कौनो मकां बख्शी है। तो एक मीसम की ज़बां काट के खुश था जालिम, उसी मीसम ने हज़ारों को ज़बां बख्शी है, उसी मीसम ने हज़ारों को ज़बां बख्शी है, उसी मीसम ने हज़ारों को ज़बां बख्शी है। तो कमाएगी ये ज़ीस्त के दिल में कसक नहीं, इजहार हक के बाब में कोई झिझक नहीं। तो हिम्मत होकर किसी में तो मीसम से छीन ले, ये इश्क़ बूतराब है बाग़े फिदक नहीं। हिम्मत होकर किसी में तो मीसम से छीन ले, ये इश्क़ बूतराब है बाग़े फिदक नहीं। मद्दाह यूं तो गुजरे हैं लेकिन जहान में, मद्दाह यूं तो गुजरे हैं लेकिन जहान में, कुछ कुछ से आगे बढ़ गए कुछ पीछे रह गए। तो ज़िक्र अली के वास्ते ऊंचाई चाहिए, मीसम इसी ख्याल से सूली पर चढ़ गए। मीसम इसी ख्याल से ज़िक्र अली के वास्ते ऊंचाई चाहिए, मीसम इसी ख्याल से सूली पर चढ़ गए। आइए हजरात, इस मिदहत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक इंतहाई मारूफ शख्सियत, इंतहाई मशहूर शायर और अपने फ़न के मुनफरिद थे जनाब मोहतरम शमीम अमरोहवी साहब, और आज उनका बहरहाल वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इंतकाल हो चुका है उनका, लेकिन उनके कलाम, उनकी याद मौजूद है। उनके कलाम भी लोगों के ज़बाज़द हैं, और उनकी निशानी उनके फ़र्जंद जनाब ज़ैग़म शमीम साहब माइक पर हैं। आप हज़रात समात फरमाएँ, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। अव्वलन आप तमामी हज़रात की खिदमत में जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला अब्बास के 4 मिसरों से अपनी हाज़री दर्ज करता हूँ। हाज़िर करता हूँ खुला इजाज़त कि तेरे ईसार से कुल हर बे बातिल काटे, तेरे ईसार से कुल हर बे बातिल काटे, यासो हसरत के शिगाफ इब्ने अली ने पाटे, यासो हसरत के शिगाफ इब्ने अली ने पाटे, और शिकमे मश्क भरा तर न किए अपने होंठ, आबे दरिया ने बहुत पाँव के तलवे चाटे। शिकमे मश्क भरा, शिकमे मश्क भरा तर न किए अपने होंठ, शिकमे मश्क भरा, शिकमे मश्क भरा तर न किए अपने होंठ, आबे दरिया ने बहुत पाँव के तलवे चाटे।
आबे दरिया ने बहुत पाँव के तलवे क्या चाटे। कहने, सुभान अल्लाह। आबे शुक्रिया। आबे दरिया ने बहुत पाँव के तलवे चाटे। और 4 मिसरे और देखेंगे हजरात कि भागे नबी को छोड़कर हर जंग में जो लोग, भागे नबी को छोड़कर हर जंग में जो लोग, नजरों में मुफ्तियों की वो सुल्तान हो गए। क्या कहने, भागे नबी को छोड़कर हर जंग में जो लोग, नजरों में मुफ्तियों की वो सुल्तान हो गए। और जिसने नबी को पाला वो काफिर कहा गया। जिसने नबी को पाला वो काफिर कहा गया। बागे फिदक के चोर मुसलमान हो गए। क्या कहने, के चोर क्या मुसलमान कहने, वाह, सुभान अल्लाह। बागे फिदक के चोर मुसलमान हो गए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हर जंग में जो लोग, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी को छोड़कर हर जंग, भागे नबी को छोड़ के हर जंग में जो लोग, नजरों में मुफ्तियों की वो सुल्तान हो गए। और जिसने नबी को पाला वो काफिर कहा गया। बागे फिदक के चोर मुसलमान हो गए। बहुत शुक्रिया। बागे फिदक के चोर मुसलमान हो गए। क्या कहने, 4 सुभान मिसरे अल्लाह। और देख लीजिए कि ये कहने आई थी जैगम से आज बादे सबा। ये कहने आई थी जैगम से आज बादे सबा, जहान खैर में आमद तेरे इमाम की है। ये कहने आई थी जैगम से आज बादे सबा, जहान खैर में आमद तेरे इमाम की है। मैं जा रहा हूँ इमाम ज़मन की चौखट पर, वहाँ सुना है जरूरत किसी गुलाम की है। क्या कहने, मैं जा रहा सुभान हूँ अल्लाह। इमाम ज़मन की चौखट पर, वहाँ सुना है जरूरत किसी गुलाम की है। वहाँ सुना है जरूरत किसी गुलाम की है। 4 मिसरे और समात फरमा लीजिए कि खुदा गवाह, खुदा की किताब जिंदा है। खुदा गवाह, खुदा की किताब, खुदा गवाह, खुदा की किताब जिंदा है। अभी हदीसे रिसालत महाब जिंदा है। क्या कहने, खुदा गवाह, खुदा की किताब जिंदा है। अभी हदीसे रिसालत महाब जिंदा है। और निज़ाम वक्त तो सूरज बदल नहीं सकता। निज़ाम वक्त तो सूरज बदल नहीं सकता। कोई जरूर पसे आफताब जिंदा है। कोई जरूर पसे आफताब जिंदा है। कोई जरूर पसे आफताब जिंदा। एक सलवात का सहारा दे दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाजिर करता हूँ कि कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा पर्दे में है। इंशाअल्लाह। मतला हाजिर कर रहा हूँ, समात फरमाए कि जिंदगी के वास्ते एक सिलसिला पर्दे में है। जिंदगी के वास्ते एक सिलसिला पर्दे में है। जिंदगी के वास्ते एक सिलसिला पर्दे में है। आस क्यों टूटे जब अपना आसरा पर्दे में है। क्या कहने, जिंदगी क्या के कहने, वास्ते बहुत अच्छा है। एक सिलसिला पर्दे में है। आस क्यों टूटे, क्यों टूटे जब अपना आसरा पर्दे में है। और उसने मतलब कि यूसुफ ज़हरा जमाले मुस्तफ़ा पर्दे में है। यूसुफ ज़हरा जमाले मुस्तफ़ा पर्दे में है। जलवगर जिसमें हक वो आईना पर्दे में है। जलवगर जिसमें हक वो आईना पर्दे में है। और यूं हमारे सामने आते हुए डरती हैं वो। यूं हमारे सामने आते हुए डरती हैं वो। जानती हैं मुश्किलें मुश्किल कुशा पर्दे में है। यूं हमारे सामने आते हुए डरती हैं वो। जानती हैं मुश्किलें मुश्किल कुशा पर्दे में है। और लाख भी घेरे इसे, लाख भी घेरे इसे बीमारियां कुछ गम नहीं। लाख भी घेरे इसे बीमारियां कुछ गम नहीं। जो दवा है दीन हक की वो दवा पर्दे में है। जो दवा है दीन हक की वो दवा पर्दे में है।
और कुफ्र के सैलाब इसको गर्क कर सकते नहीं। कुफ्र के सैलाब इसको गर्क कर सकते नहीं। कश्तिये दीने खुदा का ना खुदा पर्दे में है। क्या कहने, कश्तिये दीने खुदा का ना खुदा पर्दे में है। और यूं उजालों पर अंधेरे छा नहीं सकते कभी। यूं उजालों पर अंधेरे छा नहीं सकते कभी। असल में दीने इलाही की जिया पर्दे में है। क्या कहने, असल में दीने इलाही की जिया पर्दे में है। और देख लोगे जिस घड़ी भी दिल की आंखों से उसे, देख लोगे जिस घड़ी भी दिल की आंखों से उसे, फिर न कह पाओगे अपना रहनुमा पर्दे में है। क्या कहने, फिर न कह पाओगे अपना रहनुमा पर्दे में है। और मौजिदे होंगे अभी जाहिर उसे आने तो दो। मौजिदे होंगे अभी जाहिर उसे आने तो दो। हाँ अभी कुछ वक्त है, मौजिद नुमा पर्दे में है। क्या कहने, मौजिदे होंगे अभी जाहिर उसे आने तो दो। हाँ अभी कुछ वक्त है, मौजिद नुमा पर्दे में है। और तज़मीन का शेर हाजिर करता हूँ कि चल रहा है साथ लेकर उसकी गैबत के चिराग। चल रहा है साथ लेकर उसकी गैबत के चिराग। चल रहा है साथ लेकर उसकी गैबत के चिराग। कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा पर्दे में क्या है। कहने, कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा पर्दे में है। और मुश्किले इस्लाम की ज़ैगम वही करता है हल। मुश्किले इस्लाम की ज़ैगम वही करता है हल। एक दीने हक जो मुश्किल कुशा पर्दे में है। एक दीने हक जो मुश्किल कुशा पर्दे में है। एक सलवात से और नवाज दीजिए। फिर एक बदला चंदशार और मुसल्ला अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मतला चंदशार और हाजिर करता हूँ कि जिसे इश्के अली की रोशनी अच्छी नहीं लगती। बतौर खासा मात फरमाइए। जिसे इश्के अली की रोशनी अच्छी नहीं लगती, यकीनन उसको हक से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। जिसे इश्के अली की रोशनी अच्छी नहीं लगती, यकीनन उसको हक से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। और अली के मुनकरों की मुश्किलें हल हो नहीं सकती। अली के मुनकरों की मुश्किलें हल हो नहीं सकती। सबब ये है उन्हें नादे अली अच्छी नहीं लगती। अली के मुनकरों की मुश्किलें हल हो नहीं सकती। क्या कहने, सुभान सबब ये अल्लाह। है उन्हें नादे अली अच्छी नहीं लगती। और जिया इश्के अली की लेके जाएंगे लहद में हम। जिया इश्के अली, एक सलवात से नवाज दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आइए मिलाइए। जिया इश्के अली की लेके जाएंगे लहद में हम। कसम खालिक की हमको तीरगी अच्छी नहीं लगती। कसम खालिक की हमको तीरगी अच्छी नहीं लगती। और नहीं हो तस्करा शामिल नबी की आल का जिसमें। नहीं हो तस्करा शामिल नबी की आल का जिसमें। हमें बिल्कुल भी ऐसी शायरी अच्छी नहीं लगती। क्या कहने, नहीं हो तस्करा शामिल नबी की आल का जिसमें। हमें बिल्कुल भी ऐसी शायरी अच्छी नहीं लगती। और मोहम्मद की गुलामी का वो दम क्या खाक भरते हैं। मोहम्मद की गुलामी का वो दम क्या खाक भरते हैं। दरे ज़हरा की जिनको नौकरी अच्छी नहीं लगती। दरे ज़हरा की जिनको नौकरी अच्छी नहीं लगती। और खुदाया जिंदगी में हर घड़ी इश्के अली रख दे। खुदाया जिंदगी में हर घड़ी इश्के अली रख दे। बगैर हुब्बे हैदर जिंदगी अच्छी नहीं लगती। बगैर हुब्बे हैदर जिंदगी अच्छी नहीं लगती। शायद इस शेर पे आप लोग बोले कि जो आ जाए मुकाबिल में सरे मैदान हैदर के।
जो आ जाए मुकाबिल में सरे मैदान है दर के, वो अम्मा क्या हमें वो ऊँटनी अच्छी नहीं लगती। क्या कहने, जो आ जाए मुकाबिल में सरे मैदान है दर के, अबूजर भाई, जो आ जाए मुकाबिल में सरे मैदान है दर के, वो अम्मा क्या हमें वो ऊँटनी अच्छी नहीं लगती। वो अम्मा क्या हमें वो ऊँटनी अच्छी नहीं लगती। और नबी की एक ही बेटी है जो खातूने जन्नत है। नबी की एक ही बेटी है जो खातूने जन्नत है। सहाबा को ये हक की बात भी अच्छी नहीं लगती। सहाबा को ये हक की बात भी अच्छी नहीं लगती। और तबर्रा क्यों ना हम ज़ैगम करें हैदर के दुश्मन पर। तबर्रा क्यों ना हम ज़ैगम करें हैदर के दुश्मन पर। खुदा को भी तबर्रे में कमी अच्छी नहीं लगती। क्या कहने, सुभान खुदा अल्लाह, को भी तबर्रे में कमी अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती। तबर्रा क्यों ना हम ज़ैगम करें हैदर के दुश्मन पर। खुदा को भी तबर्रे में कमी अच्छी नहीं लगती। खुदा को भी तबर्रे में कमी अच्छी नहीं लगती। बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई। तबर्रा क्यों न हम, और जो आ जाए मुकाबिल में सरे मैदान हैदर के, जो आ जाए मुकाबिल में सरे मैदान हैदर के, वो अम्मा क्या हमें वो ऊँटनी अच्छी नहीं लगती। वो अम्मा क्या हमें वो ऊँटनी अच्छी नहीं लगती। वो अम्मा क्या हमें वो ऊँटनी अच्छी नहीं लगती। और एक मतला चंद अशार और समाज फरमा लीजिए। मतला हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाइए कि शामो कूफा जीतना है शाह की हमशीर को। शामो कूफा जीतना है शाह की हमशीर को। चल दिए शब्बीर लेकर ज़ैनबे दिलगीर को। क्या कहने, शामो कूफा जीतना है शाह की हमशीर को। चल दिए शब्बीर लेकर ज़ैनबे दिलगीर को। और बेरिदाई का तसव्वुर भी ना बेरिदाई का तसव्वुर भी ना आएगा यहाँ। बेरिदाई का तसव्वुर भी ना आएगा यहाँ। रख दिया भाई ने सर पर चादरे तथीर को। रख दिया भाई ने सर पर चादरे तथीर को। और शेर हैदर भाई हैं बाबा अली मुर्तदा। शेर हैदर भाई हैं बाबा अली मुर्तदा। कौन समझेगा भला ज़ैनब तेरी तौकीर को। कौन समझेगा भला ज़ैनब तेरी तौकीर को। और क्यों ना हम लानत करें उस आदमी पर बेशुमार। क्यों ना हम लानत करें उस आदमी पर बेशुमार जिसने फाड़ा फातिमा के बाप की तहरीर को। जिसने फाड़ा फातिमा के बाप की तहरीर को। क्यों ना हम लानत करें उस आदमी पर बेशुमार जिसने फाड़ा फातिमा के बाप की तहरीर को। जिसने फाड़ा फातिमा के बाप की तहरीर को। और फर्श मातम शाम में ज़ैनब बिछाकर आपने। फर्श मातम शाम में ज़ैनब बिछाकर आपने कर दिया जिंदा दोबारा मकसद शब्बीर को। कर दिया जिंदा दोबारा मकसद शब्बीर को। और जाके रोज़ा देख ले ज़ैगम शहे अबरार का। जाके रोज़ा देख ले ज़ैगम शहे अबरार का। रोज़ा शब्बीर पर रोशन करे तकदीर को। रोज़ा शब्बीर पर रोशन करे तकदीर को। बहुत शुक्रिया। हज़रत गिराम क़द्र मोमिनीन कराम, चूँकि आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि इस वक्त रास्ते मखदूश हैं, जगह जगह जाम लगा हुआ है। हमारे वो शोराए कराम जो हमारे इश्तिहार में मुश्तहिर हैं वो टेलीफोन से राबिते में भी हैं, मगर चूँकि जाम की वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पे वो ताख़ीर से पहुँच रहे हैं। इसमें किसी का कोई ज़ोर नहीं है। इस महफ़िल में
जहाँ सामईन में कबूल किए जाते हैं उसी तरह शुआरा में भी कबूल किए जाते हैं। जहाँ के लिए जो मुंतखब था उसने वहाँ मदह खानी कर दी है। आइए हजरात, मैं अपनी फहरिस्त के आखिरी मेहमान शायर को इससे पहले कि आवाज़ दूँ, एक मकामी शायर हमारे दरमियान वैसे तो बहुत सारे हैं, हमारे बेहतरीन मनक़बत खां नौहा खां जनाब महफूज साहब इसलिए महफूज हैं कि अल्लाह ने लौहे महफूज को भी पर्दे में रखा है, तो इसलिए बहुत सारे नाम हैं जो मकामी। और हमेशा गुज़श्ता बरस मैंने यहाँ देखा कि मकामी हजरात ने अपना वक्त बैरूनी शोरा को देकर बेहतरीन मेज़बानी का हक़ अदा किया है। यहाँ तक मैं बानियाने महफिल अलहाज मंजूर हुसैन खान करबलाई साहब के खानवादे को मुबारकबाद देता हूँ कि एक मुख्तसर से वक्त में एक बेहतरीन महफिल जो आपने समाअत की है, आज वाली गैबत ने इस अंदाज से इसे कबूलियत बख्शी है कि इबादत का सिलसिला मुख्तसर है मगर अताओं का सिलसिला दराज है, कबूलियत का सिलसिला दराज है। आइए हम सब की तरफ से 4 मिसरे बारगाहे इमाम असर में पेश करें कि मेरे सरकार ये ताखीर जो फरमाते हैं, मेरे सरकार ये ताखीर जो फरमाते हैं, मुंतज़िर आपके बेचैन हुए जाते हैं। मेरे सरकार ये ताखीर जो फरमाते हैं, मुंतज़िर आपके बेचैन हुए जाते हैं। आप अपने जदे अमजद की तरफ गौर करें, वो तो आवाज़ के सुनते ही चले आते हैं। आप अपने जदे अमजद की तरफ गौर करें, वो तो आवाज़ के सुनते ही चले आते हैं। जनाबे शमीम फैज़ाबादी मरहूम ने कहा था कि वो हम शक्ल नबी गर चाँद सी सूरत दिखा देते, वो हम शक्ल नबी गर चाँद सी सूरत दिखा देते, मुसलमान हो के काफिर अपने बुतखानों को ढा देते। वो हम शक्ल नबी गर चाँद सी सूरत दिखा देते, मुसलमान हो के काफिर अपने बुतखानों को ढा देते। तो गमे शब्बीर में रोने से फुर्सत ही कहाँ, लेकिन वो आ जाते तो रोते रोते हम भी मुस्कुरा देते। आइए हजरात, इसी के साथ जनाबे हुर सुल्तानपुरी साहब को आवाज़ दी जाए और यकीनन मकामी फहरिस्त में एक हुर है जो निकल के आ रहा है और ये बता रहा है कि हर फहरिस्त में एक हुर रहेगा अगर वो हुसैनियत से वाबस्ता है। अच्छा, बैरूनी मुसाफिर खाने से माशाल्लाह ये मुसलसल मुसाफिर हैं। तो आइए, चूँकि मुसाफिर खाने में हमेशा मुसाफिर ही रहता है और खुदा की कसम ये मिदहत मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऐसे मुसाफिर हैं जो हमेशा सफ़र में रहते हैं। और आइए जनाब हुर साहब को समाअत करें, उसके बाद हमारी फहरिस्त के एक और शायर हैं सुल्तानपुर, यहाँ बैठकर इस बात की ज़मानत देगा कि हम शम्मा बुझने पे भी खैमे से न जाएगा कोई, शम्मा बुझने पे भी खैमे से न जाएगा कोई, बज़्म शब्बीर नहीं बज़्म पैगंबर की तरह। आइए हजरात, हुर सुल्तानपुरी आपके हवाले हैं। एक बुलंद तरीन नारे सलवार से उनका इस्तकबाल फरमाए, बल्कि मैं तीनों नारे लगाऊं ताकि मुकम्मल कलमा बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जनाबे हुर सुल्तानपुरी। उसके बाद हमारी फहरिस्त के एक और आखिरी शायर होंगे, आप होंगे, और इंशाअल्लाह यहीं पर मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद अस्करी खान साहब के हुक्म से इस महफिल को आगे कार्रवाई की तरफ ले जाया जाएगा। और जनाब रज़मी साहब जो खालिक मिसरा हैं, आज के मुसलसल निगाह बनाए हुए हैं, और अल्लाह इनको तूल उम्र अता करे। यहाँ बैठकर आज जो वो शेरी निकात को पेश करते हैं, सरजमीन सुल्तानपुर में बैठकर लखनवी दबिस्तान की फ़िक्रें जो सुल्तानपुर से नशर करते हैं, उन्हें रज़मी सुल्तानपुरी के नाम से जाना जाता है। आज के वो खालिक मिसरा हैं और उस मिसरे पर आप जनाबे हुर सुल्तानपुरी साहब से समाअत फरमाएं बुलंद तरीन नारे सलवात के साथ। हाज़िरान महफ़िल सलाम अलैकुम। सबसे पहले जश्न की मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। समाअत फरमाएं।
कारवां पर्दे के बाहर, रहनुमा पर्दे में। कारवां पर्दे के बाहर, रहनुमा पर्दे में। एक मतलब समाप्त में, क्योंकि मिसरा जहन में नहीं था तो वैसे ही हो गया समाप्त करना। आप पढ़ने में भी हो रहे हैं। जी जी। अस्करी का शेर नूरे किबरिया पर्दे में है। अस्करी का शेर नूरे किबरिया पर्दे में है। फातिमा का लाल जाने मुर्तजा पर्दे में है। मुझको अच्छा कर नहीं सकता जमाने का तबीब, मैं मरीज़े इश्क हूँ मेरी दवा पर्दे में है। अस्करी का शेर नूरे किबरिया पर्दे में है। फातिमा का लाल जाने मुर्तजा पर्दे में है। मुझको अच्छा कर नहीं सकता जमाने का तबीब, मैं मरीज़े इश्क हूँ मेरी दवा पर्दे में है। और फक्र से ऐ हुर कहो दुनिया मेरी ठोकर में है। फक्र से ऐ हुर कहो दुनिया मेरी ठोकर में है। खुश नसब तू है अरीजा भी तेरा पर्दे में है। खुश नसब तू है अरीजा भी तेरा पर्दे में है। एक मतलब 2-3 शेर और समाज फरमा ले। मिसरा था खटखट का माज अज़ा में है तुम्हारे नाम का चर्चा अली अकबर। एक मतलब 2-3 शेर समाज फरमा। एक सलवात इरशाद फरमा। शब हिजरत के मौके पर अगर होता अली अकबर। शब हिजरत के मौके पर अगर होता अली अकबर। शब हिजरत के मौके पर अगर होता अली अकबर। शबाहत देख कर कहते नबी सो जा अली अकबर। शबाहत देख कर कहते नबी सो जा अली अकबर। शबाहत देख कर कहते नबी सो जा अली अकबर। लहू की शक्ल में हर मातमी के सर पे सजता है। लहू की शक्ल में हर मातमी के सर पे सजता है। कई सदियों से तेरे नाम का सेहरा अली अकबर। और ये खास तौर से जमात वाले तज़मीन का शेर। नुसैरी की तरह कोई तुम्हें माबूद ना कह दे। नुसैरी की तरह कोई तुम्हें माबूद ना कह दे। अज़ा में है तुम्हारे नाम का चर्चा अली अकबर। नक्ते का बन समाज फरमाए। जनाबे हुर की तरह हुर की भी तकदीर बन जाए। जनाबे हुर की तरह हुर की भी तकदीर बन जाए। मिले जो आपकी नालैन का सदका अली अकबर। सलवात पढ़ दीजिए। 2-3 शेर दुआ। इमाम ज़माना के हवाले से एक मतला 3-4 शेर अवधी ज़बान में हाजिर करता हूँ। भोजपुरी मतलब देखिए। अब गैब के पर्दे से
सरकार चलायो समाज पर मैं देखा अब गैब के पर्दे से सरकार चलायो सरकार चलायो हो जाता है पापी संसार चलायो हो जाता है पापी संसार चलायो तलवार उठाओ अब रहवार पा बैठा रहवार पा बैठा अहमद के धरे सर पा दस्तार चलायो अब गए पर्दे से सरकार चलायो मौला इस जिंदगी के कौनो नहीं भरोसा कौनो नहीं भरोसा एक बार करी हमहू दीदार चलायो अब गए सरकार चलायो जानत है पापी वारिस कभो न आए वारिस कभो न आए पड़ जाते यह के मुंह पा फिटकार चलायो अब गैब के पर्दे से सरकार चलायो और ये खास तौर से समाज में बंद ये हालात हजरा के अंदर में हाजिर करता हूँ बंद सरकार देख ईरान का अमेरिका फिर देता है धमकी ईरान का अमेरिका फिर देता है धमकी फिर देता है धमकी दौड़ौते वही कैनी रहवार चलायो भाई देखिए ये भी गजब का है याली याली ये इम्तिजाज आपने देखा जबान अवधी और इनाम अवध का है आए बिस्मिल्लाह ईरान का अमेरिका फिर देता है धमकी फिर देता है धमकी दौड़ौते वही कैनी रहवार चलायो अब गैब के पर्दे से सरकार चलायो एक बंद के लिए करबला लेके चलता हूँ अब्बास लमदार की बारगाह करता हूँ सुनाए दौड़ौते वही कैनी रहवार चलायो अब्बास जरी बोले हो जाती यहाँ पर ले मीन्स कयामत हाजिर करता हूँ समझ में अब्बास जरी बोले हो जाती यहाँ पर हो जात यहाँ पर भूलो से जो रेखा के यही पार चलायो अब्बास जरी बोले हो जाती यहाँ पर हो जात यहाँ पर भूलो से जो रेखा के यही पार चलायो अब गैब के पर्दे से सरकार चलायो मक्ते का बंद हाजिर करता हूँ समाज फरमान लिख के अरिजामा बैठा है दरिया पा बैठा है
दरिया पा हुर छोड़ दिस अब तो घर बार चलायो क्या हुर छोड़ दिस अब तो घर बार चलायो क्या। चलिए दुरूद पढ़िए हज़रात। फरमाइश है समाज फरमाए हाजिर कर देता हूँ। बहुत पुराना कलाम है। शूरा के जरिए बन के प्रधान जबरदस्ती शूरा के जरिए बन के प्रधान जबरदस्ती प्रधान जबरदस्ती गद्दी अली का छीन बेईमान जबरदस्ती गद्दी अली का छीन बेईमान जबरदस्ती। खास तौर से समाज फरमाए हैदर के दर का छोड़ा मुंह पंजतन से मोड़ा मुंह पंजतन से मोड़ा अब दर बदर जलाओ लो बान जबरदस्ती। हैदर के दर का छोड़ा मुंह पंजतन से मोड़ा मुंह पंजतन से मोड़ा अब दर बदर जलाओ लो बान जबरदस्ती। शूरा के जरिए बन के प्रधान जबरदस्ती पैजामा छोट पहना कुर्ता पहन के लंबा कुर्ता पहन के लंबा तू बेच लिहाया अपन ईमान जबरदस्ती। शूरा के जरिए बन के प्रधान जबरदस्ती। और ये बंद खास तौर से ये भी हालत है करता हूँ। शूरा के जरिए बन के प्रधान जबरदस्ती अंधराई गवा कुछ ना सूझी अमेरिका का सूझी अमेरिका का यूरेनियम बना इस ईरान जबरदस्त यूरेनियम बना इस ईरान जबरदस्ती। शूरा के जरिए बन के प्रधान जबरदस्ती खैबर से भागी आया खंदक से भागी आया खंदक से भागी आया घोड़ा पधई दिया फिर बोहतान जबरदस्त। शूरा के जरिए बन के प्रधान जबरदस्ती शूरा के जरिए बन के प्रधान जबरदस्ती गद्दी अली के छीन से बेईमान जबरदस्ती घोड़ा न लई के भागत तू का कभो हुआ से तू का कभो हुआ से ऐठे न होता वो कह जो कान जबरदस्ती। शूरा के जरिए बन के प्रधान जबरदस्ती गद्दी अली के छीन से बेईमान जबरदस्ती। और ये भी खास तौर से बंद समाज देखें जन्नत नबी से पाए सलमान बैठे बैठे
सलमान बैठे बैठे आपस में कैली हाथू दौड़ान जबरदस्ती शूरा के जरिए बन के प्रधान जबरदस्ती कैसन कही पहलवा ओका तू ही बताओ ओका तू ही बताओ एक सांप से जे डर के चिचियान जबरदस्ती मक्ते के बंस माथ माले खत्म दुआ जहरा कजे 27 बागे फेदग जे खाइस बागे फेदाग जे खाइस हुर कहीं न पाए वो का इंसान जबरदस्ती हुर कहीं न पाए वो का इंसान जबरदस्ती। देखिए आपने दरमियान में देख ही लिया, अवधी वो जबान थी कि अवध कोर्ट के इनाम देना पड़ा। और माशाल्लाह जनाब अबूजर किंतूरी साहब जहाँ होते हैं यहाँ से करबला तक ये अवध की न सिर्फ कैमरों से बल्कि अदब से नुमाइंदगी करते हैं। यही सबब है कि आप हमेशा ग्राफ एजेंसी को दुश्मनाने अहले बैत को मुस्कत और दंदा शिकत जवाब देते हुए हर मसले पर आपको ग्राफ एजेंसी नज़र आएगा। बड़े से बड़े उलमा की खिदमत लेते हुए हमारे लिए जश्न मुंतज़र में इंतज़ार का इनाम ये मिला कि हमारे 3 बाबरकत शोरा बस 10-12 किलोमीटर के रास्ते पर हैं, जिनमें जनाब कलीम असगर बिजनौरी, जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी और जनाब फ़खरी मेरठी साहब, ये 3 शोराए कराम आया ही चाहते हैं। और हुर साहब की अवधि के बाद मुझे मेरे बचपन के धुन्ना चचा अकबरपुरी याद आ गए, जो कभी मेराज पर पढ़ते थे, कबहू हमका मदीने की सनक होई भाई करी, कबहू हमका मदीने की सनक होई भाई करी। मैं बहुत याद कर रहा था कि कुछ अशार उसके याद आ जाएं, लेकिन याद नहीं आया। मेराज पर शक करने वालों को भी उन्होंने नहीं बख्शा, मगर एक अलग अंदाज अख्तियार करते हुए पैगंबर से कहा कि रात माँ भेंट करे जई हो तो शक होई भाई करी। तो ये मेराज थी जहाँ रात माँ भेंट करे जई हो तो शक होई भाई करी। तो जनाबे हुर साहब को मैं शायद पहली बार सुन रहा था, और अगर अबूजर साहब ने ज़बरदस्ती की रदीफ पर उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि गुजारिश से सुना तो ये ज़बरदस्ती की बहुत बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने कहा कि मैं मरीज़ इश्क हूँ, मेरी दवा पर्दे में है। ये आज ही का हुर नहीं, ये करबला का हुर भी कह रहा था कि मैं मरीज़ इश्क हूँ, मेरी दवा पर्दे में है। तो जाहिर है कि इसीलिए शायर ने जनाबे हुर की वकालत करते हुए कहा था कि बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था। हुर साहब कहाँ हैं आप? बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था, जीने की रहे हक में अदा पूछ रहा था। बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था, जीने की रहे हक में अदा पूछ रहा था। हुर ने शहे मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था, पता पूछ रहा था। हुर ने शहे मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था, पता पूछ रहा था। और जनाबे हुर साहब ने जहां जनाबे हुर के नाम से अपने तखल्लुस का इम्तिजाज किया और बताया कि हर ज़माने का हुर मरीज़ इश्क ही रहा है, और जो मरीज़ इश्क होता है यकीनन कोई उससे पूछे कि जब तक उसका मसीहा निगाहों के सामने ना हो। जश्न मुंतज़र में बैठा हुआ हर मुंतज़िर मरीज़ इश्क है। ये सारे मरीज़ाने इश्क हैं जो जश्न मुंतज़र में बैठे हुए हैं, और सबकी ज़बान पर है मैं मरीज़ इश्क हूँ, मेरी दवा पर्दे में है। हजरात, मैं आपके हवाले एक और बैरूनी शायर कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह वो पढ़ते हुए होंगे, हमारे शोराए कराम की आमद होगी। वरना उस दरमियान अगर हमें इंतज़ार में किसी किस्म की तगोदो हुई
तो मुझे यकीन है कि इस वक्त का बैठा हुआ मजमा वक्त अरीज़ा तक का इंतज़ार कर रहा है। क्यों? इसलिए कि इमाम से अर्ज़ी लगाने के लिए जिनका इमाम कोई इत्तेफाकी इमाम हो उसे इत्तेफाक हासिल होता है, जिसका इमाम पर्दे गैबत में क़यामत तक का इमाम हो उसे अख्तियार हासिल होता है। इसलिए जब वो चाहे अरीज़ा लिखे। शायर ने कहा कि बहुत आंसू पिघल कर बह गए गम की रवानी में, बहुत आंसू पिघल कर बह गए गम की रवानी में, बड़ा ही सोज है जाने वफा तेरी कहानी में। अरीज़े में अगर फुरकत की सारी दास्तान लिख दूं, सुलग उठेगा दरिया, आग लग जाएगी पानी में। अरीज़े में अगर फुरकत की सारी दास्तान लिख दूं, अरीज़े में अगर फुरकत की सारी दास्तान लिख दूं, सुलग उठेगा दरिया, आग लग जाएगी पानी में। हजरात आप मुतवज्जे हैं, शोराए कराम की आमद हो रही है और इंशाअल्लाह अनकरीब आया ही चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक नामे नामी शोरा की फहरिस्त में जनाबे सज्जाद बिजनौरी साहब का भी है। और जाहिर है कि जब जनाबे सज्जाद बिजनौरी की बात आई है तो अभी मैंने आपके सामने अलीपुर कर्नाटक से देबल शाहिदी के 2 मिसरे सुनाए थे। मुझे 4 मिसरे अभी असरे हाजिर में मौजूदा सफ़र में देबल शाहिदी ने कहा, बहुत प्यारे अंदाज में। जनाबे अबूजर किंतूरी साहब, मेरा पूरा स्टेज, हमारे मोहतरम उलमाए किराम, हमारा अदब, सब के सब बोल रहे हैं और बोल इसलिए रहे हैं कि मुंह सलीके से खोलना सीखा, मुंह सलीके से खोलना सीखा, बात को अपनी तोलना सीखा, वारिसे नहजे मीसमी हैं हम, हमसे दुनिया ने बोलना सीखा। वारिसे नहजे मीसमी हैं हम, हमसे दुनिया ने बोलना सीखा। वारिसे नहजे मीसमी हैं हम, बोलते तो आप भी हैं। खुदा की कसम, आपने बताया कि अगर पत्थरों ने दस्ते रिसालत पे कलाम किया है तो हम फर्शे महफिल पर बैठकर जिक्र इमामत पे कलाम करते हैं। ये भी एक हमारी मेराज है और मेराज दर मेराज ये है कि जनाबे देबल शाहिदी ने कहा कि गाजी है अलकमापा, गाजी है अलकमापा और नज़े पे हैं हुसैन। सुनिएगा खुदा की कसम, झिझोड़ा है जिस तरह से देबल शाहिदी ने कि गाजी है अलकमापा तो नज़े पे हैं हुसैन। ज़ैनब तुम्हारे सब्र की इमदाद चाहिए। गाजी है। अब मैं शायर को बुलाने जा रहा हूं सज्जाद बिजनौरी साहब को कि गाजी है अलकमापा तो नज़े पे हैं हुसैन। ज़ैनब तुम्हारे सब्र की इमदाद चाहिए। और बतला रहे हैं शाम गरीबा के जलजले, अब करबला को सजदे सज्जाद चाहिए, अब करबला को सजदे सज्जाद चाहिए। बहुत कीमती 4 मिसरे मैंने आपके हवाले किए थे, लेकिन शायद ये वक्त तहज्जुद के वक्त से गले मिल रहा है। इशा रुखसत हो रही है, तहज्जुद की आमद है और जाहिर है कि तहज्जुद गुजारों के दरमियान मुझे एक ऐसे शायर को पेश करने की सआदत हासिल हो रही है कि जिसका वक्त ही वक्त तहज्जुद है, उसकी मिदहत ही तहज्जुद के वक्त से शुरू होती है और उस शायर का नाम सज्जाद बिजनौरी है। मैं गुजारिश गुजार हूँ और आप हजरात अपनी जागती हुई नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें ताकि उन्हें भी एहसास हो कि आप सज्जाद हैं तो हम सज्जादे हैं। एक बुलंद तरीन सलवात से। हज़रात सबसे पहले मैं आपको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी और अपनी जानिब से इस जश्न के हकीकी वारिस इमाम ज़माना को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हर इंसान जो है 12वें इमाम के आने के लिए दुआ करता है, लेकिन 12वें इमाम का ख्याल क्या होगा अपने लफ्ज़ों में पेश किया। समाज फरमा लें कि फरिश्ते सर को झुकाते थे जिसकी चौखट पर, फरिश्ते सर को झुकाते थे जिसकी चौखट पर, चराग आज भी रोशन है उस घराने का, चराग आज भी रोशन है उस घराने का। अब मैं आ तो जाऊंगा, पर्दा हटा के गैबत का, शऊर पैदा तो कर लो मुझे बुलाने का।
क्या कहना है? मैं आ तो जाऊंगा पर्दा हटा के गैबत का, शऊर पैदा तो कर लो मुझे बुलाने का, शऊर पैदा तो कर लो मुझे बुलाने का। और कोई है राह पे हक की, कोई है बातिल पर, देखें, कोई है राह पे हक की, कोई है बातिल पर। हर एक शख्स का हमसर मुकाम कैसे हो, हर एक शख्स का हमसर मुकाम कैसे हो। गिराया जिनको मोहम्मद ने अपनी नजरों से, बताओ उनका भला एहतराम कैसे हो। क्या कहना है? गिराया जिनको गिराया जिनको मोहम्मद ने अपनी नजरों से, बताओ उनका भला एहतराम कैसे हो, बताओ उनका भला एहतराम कैसे हो। और जो कर ना सके पूरा वो वादा नहीं करते, देखें, जो कर ना सके पूरा वो वादा नहीं करते। हम हक का कोई काम अधूरा नहीं करते, हम हक का कोई काम अधूरा नहीं करते। सर अपना कटा देते हैं हम दीन की खातिर, मैदान मगर छोड़ के भागा नहीं करते। सर अपना कटा देते हैं हम दीन की खातिर, मैदान मगर छोड़ के भागा नहीं करते, मैदान मगर छोड़ के भागा नहीं करते। और जो दिल में नहीं रखते वफादारी का जज्बा, जो दिल में नहीं रखते वफादारी का जज्बा, उन लोगों से रिश्तों को निभाया नहीं जाता, उन लोगों से रिश्तों को निभाया नहीं जाता। भाई जो वफा करते अगर भाई से सज्जाद, यूसुफ कभी बाजार में लाया नहीं जाता। भाई जो वफा करते अगर भाई से सज्जाद, वफा करते अगर भाई से सज्जाद, यूसुफ कभी बाजार में लाया नहीं जाता। और समंदरों के थपेड़ों पे लिख दो नाम हुसैन, समंदरों के थपेड़ों पे लिख दो नाम हुसैन। ये डूबती हुई कश्ती को पार करते हैं, ये डूबती हुई कश्ती को पार करते हैं। न वो हुसैन के आशिक हैं और न गाजी के, जो भाई भाई के दिल में दरार करते हैं। न वो हुसैन के आशिक हैं और न गाजी के, न वो हुसैन के आशिक हैं और न गाजी के, जो भाई भाई के दिल में दरार करते हैं। और जाता ही नहीं लौट के मायूस सवाली, जाता ही नहीं लौट के मायूस सवाली। मिलती है फरिश्तों को भी खैरात अली से, मिलती है फरिश्तों को भी खैरात अली से। होता ना अगर बीच में पर्दा शबे महराज, हो जाती मोहम्मद की मुलाकात अली से। होता ना अगर बीच में पर्दा शबे महराज, होता ना अगर बीच में पर्दा शबे महराज, हो जाती मोहम्मद की मुलाकात अली से, हो जाती मोहम्मद की मुलाकात अली से। और हुसैन कोई नहीं आप जैसा ज़रा नवाज, हुसैन कोई नहीं आप जैसा ज़रा नवाज। है शुक्रिया मुझे करबो बला बुलाने का, है शुक्रिया मुझे करबो बला बुलाने का। हबीब कहते थे मैदान जंग में आकर, मिला है आज शरफ दोस्ती निभाने का, मिला है आज शरफ दोस्ती निभाने का। आजाद बुलंद सलावत पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आजाद एक सलाम के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, समाअत फरमा लें कि सरों को राहे खुदा में कटाने वाले लोग, देखें सरों को राहे खुदा में कटाने वाले लोग, यही है दीने पैगंबर बचाने वाले लोग, यही है दीने पैगंबर बचाने वाले लोग। और दिखाई देंगे तुम्हें हश्र में रसूल के साथ, दिलों में उल्फते सरवर बसाने वाले लोग, दिलों में उल्फते सरवर बसाने वाले लोग। और हुसैनियों के कबीलों में मिल नहीं सकते। बहुत खास शेर आपके हवाले कर रहा हूं कि हुसैनियों के कबीलों में मिल नहीं सकते, जमीर बेच के पैसा कमाने वाले लोग। हुसैनियों के कबीलों में मिल नहीं सकते, हुसैनियों के कबीलों में मिल नहीं सकते, जमीर बेच के पैसा कमाने वाले लोग। और हज़ार जो लोग अपनी छतों पर अलार्म लगाते हैं उनके हवाले से समाअत फरमा ले। जमीर बेच के पैसा कमाने वाले लोग, और कभी भी करते नहीं हैं दीवार आंगन में अलम को गाजी के छत पर लगाने वाले लोग, कभी भी करते नहीं हैं दीवार आंगन में अलम को गाजी के छत पर लगाने वाले लोग। और खुदा ही जाने के आपस में कैसे लड़ते हैं,
खुदा ही जाने कि आपस में कैसे लड़ते हैं अलम के साथ जरी को सजाने वाले लोग। खुदा ही जाने के आपस में कैसे लड़ते हैं भाई वाह, खुदा ही जाने के आपस में कैसे लड़ते हैं अलम के साथ जरी को सजाने वाले लोग। भाई कई अलम बार के पढ़िए साथ आप। खुदा ही जाने के आपस में कैसे लड़ते हैं, खुदा ही जाने के आपस में कैसे लड़ते हैं अलम के साथ जरी को सजाने वाले लोग। अलम के साथ भाई यहाँ तो आप पढ़ते रहिए ये शेर। क्या कहना है? खुदा ही जाने के आपस में कैसे लड़ते हैं, खुदा ही जाने के आपस में कैसे लड़ते हैं अलम के साथ जरी को सजाने वाले लोग। अलम के साथ जरी को सजाने वाले लोग और किसी भी हाल में जन्नत में जा नहीं सकते नबी को अपने ही जैसा बताने वाले लोग। किसी भी हाल में जन्नत क्या में कहना? जा नहीं सकते, किसी भी हाल में जन्नत में जा नहीं सकते नबी को अपने ही जैसा बताने वाले लोग। और सिवाय शह के अज़ादार के नहीं मिलते, सिवाय शह के अज़ादार के नहीं मिलते कफन को अपने ही पहले से लाने वाले लोग। बेशक सिवाय बेशक। शह के अज़ादार के नहीं मिलते, सिवाय शह के अज़ादार के नहीं मिलते कफन को अपने ही पहले से लाने वाले लोग। और मसायबे गमे दुनिया से दूर रहते हैं, मसायबे गमे दुनिया से दूर रहते हैं गमे हुसैन में आंसू बहाने वाले लोग। बेशक वाह। गमे हुसैन में आंसू बहाने वाले लोग। और वही हुसैन के आशिक हैं बिल यकीन सज्जाद, वही हुसैन के आशिक हैं बिल यकीन सज्जाद अज़ां के वक्त मुसल्ले पे आने वाले लोग। वाह। वही हुसैन के आशिक हैं बिल यकीन सज्जाद अज़ां के वक्त मुसल्ले पे आने वाले लोग। वही हुसैन के आशिक हैं बिल यकीन सज्जाद अज़ां के वक्त मुसल्ले पे आने वाले लोग। और हज़रत आपके मिसरा आपकी अमानत आपके हवाले कर दूं जो कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा पर्दे में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हज़रत कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा पर्दे में है। ए नसीमे सहर बतला दे के क्या पर्दे में है, ए नसीमे सहर बतला दे के क्या पर्दे में है। मैं तो बस ये जानता हूँ हलता पर्दे में है, मैं तो बस ये जानता हूँ हलता पर्दे में है। सिलसिला दर सिलसिला पर्दे में है। सिलसिला दर सिलसिला पर्दे में है। ए ज़मीने करबला तेरी जिया पर्दे में है, ए ज़मीने करबला तेरी जिया पर्दे में है। मेरे दिल की कैफियत से आप वाकिफ हो इमाम, मेरे दिल की कैफियत से आप वाकिफ हो इमाम। मैंने जो कुछ भी अरीज़े में लिखा पर्दे में है, मैंने जो कुछ भी अरीज़े में लिखा पर्दे में है। मेरे दिल की कैफियत से आप वाकिफ हैं इमाम। मैंने जो कुछ भी अरीज़े में लिखा पर्दे में है। जबकि वो इंसान की शहरत से ज़्यादा है करीब। क्या बात है? जबकि वो इंसान की शहरत से ज़्यादा है करीब और दुनिया ये समझती है खुदा पर्दे में है। जबकि वो इंसान की शहरत से, जबकि वो इंसान की शहरत से ज़्यादा है करीब और दुनिया ये समझती है खुदा पर्दे में है। ये हदे मेराज है, मेराज की शब अर्श पर। ये हदे मेराज है, मेराज की शब अर्श पर। मुस्तफ़ा पर्दे के बाहर मुर्तज़ा पर्दे में है। ये हदे मेराज है, मेराज की शब अर्श पर। मुस्तफ़ा पर्दे के बाहर मुर्तज़ा पर्दे में है। इंतकाम फातिमा ज़हरा जो लेगा एक दिन, इंतकाम फातिमा ज़हरा जो लेगा एक दिन। वो हसन अस्करी का लाडला पर्दे में है, वो हसन अस्करी का लाडला पर्दे में है। अहले इमा कर रहे हैं जिसके आने की दुआ, अहले इमा कर रहे हैं जिसके आने की दुआ। वो इमाम आखिरी उद्दा कुशा पर्दे में है, वो इमाम आखिरी उद्दा कुशा पर्दे में है। और हज़रत हर साल करोड़ों जायदीन जो है करबला जाते हैं, उस हवाले से समात फरमा ले। और किस तरह खुद में समाती है करोड़ों जायदीन, किस तरह खुद में समाती है करोड़ों जायदीन। है खबर किसको ये राज़े करबला पर्दे में है,
है खबर किसको ये राज़े करबला पर्दे में है। और क्या अजब अंदाज है ये रहनुमाई का हुजूर, क्या अजब अंदाज है ये रहनुमाई का हुजूर, कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा पर्दे में है। क्या अजब अंदाज है ये रहनुमाई का हुजूर, कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा पर्दे में है, कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा पर्दे में है। और रोज ये सज्जाद करता है दुआ बादे नमाज, रोज ये सज्जाद करता है दुआ बादे नमाज। भेज दे उसको कि जो बैठा हुआ पर्दे में है, भेज दे उसको कि जो बैठा हुआ पर्दे में है। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी कद्र जनाब सज्जाद बिजनौरी साहब से आप बेहतरीन अंदाज में कलाम समात फरमा रहे थे। वो घड़ी आ गई कि मैंने 3 शुराए किराम के नाम लिए, लेकिन नाम के साथ जाम भी है और यकीनन जाम जो है वो दराज हो रहा है, इसलिए इम्कानात में नहीं है अभी तक कि वो पहुंच सकें। इसलिए इस महफिल को एक मेज़बान शायर के ज़रिए समेटा जाएगा और जाहिर है कि ये समेटना आइंदा साल तक के लिए फिर मुलतवी होगा। लेकिन उसके बाद हमारी इंतज़ामिया और हमारे मुंतज़मीन जो अहकाम सादिर करेंगे, अहकाम की जब बात आती है तो नज़ीर बाकरी कहते हैं कि यही हैं रूह के अहकाम मेरे जिस्म के नाम, यही हैं रूह के अहकाम मेरे जिस्म के नाम। घटे बढ़े मेरा साया मगर वो कद में रहे, घटे बढ़े मेरा साया मगर वो कद में रहे। अभी आप समात कर रहे थे जनाब सज्जाद बिजनौरी साहब से कि मुस्तफ़ा पर्दे के बाहर मुर्तज़ा पर्दे में है। जनाब इनकलाब सिरसवी ने कहा था कि उसूल दीन है ईमान का निसाब है तू, उसूल दीन है ईमान का निसाब है तू, जो इंतसाब खुदा से है वो किताब है तू। खतीब वो है मगर लहजे खिताब है तू, उसे हिजाब में रहना है बेनकाब है तू, उसे हिजाब में रहना है बेनकाब है तू। तो आइए हजरात, ये हमारी फहरिस्त के इस वक्त के मेज़बान मनक़बत ख़ान और सुल्तानपुर के हर दिल अज़ीज़ नौहा ख़ान बरादर अज़ीज़ जवां साल जनाब महफूज सुल्तानपुरी साहब को ज़हमत सुखन दी जाए कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस महफिल से को अपने कलाम से मुनव्वर फरमाएँ। आप हजरात अपनी क़ुव्वत इरादी को समेटते हुए इरादों की बुलंद तरीन सलवात से उनका इस्तक़बाल फरमाएँ। हाज़िरीन महफिल सलामुन अलैकुम। आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी बहुत मुबारक। और मिसरा एक मतला और चंद अशार पेश करता हूँ मिसरे पे बतौर ख़ास। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आईना दर आईना एक आईना पर्दे में है, आईना दर आईना एक आईना पर्दे में है, आईना दर आईना एक आईना पर्दे में है। जैसे शहरग से करी रहे कर खुदा पर्दे में है। वाह, बेहतरीन मतला है, बेहतरीन मतला। वाह वाह वाह। जैसे शहरग से करी रहे कर खुदा पर्दे में है। जब तलक वो जाने शैला, जब तलक वो जाने शाहे लाफता पर्दे में है। जब तलक वो
पर्दे में है, आफताबे हशर भी ठहरा हुआ पर्दे में, आफताबे हशर भी ठहरा हुआ पर्दे में है। और ये भी शेर खास तौर से नज़र करता हूँ बतौर खास। उसके दम से रौनकें हैं, उसके दम से जिंदगी, उसके दम से रौनकें हैं, उसके दम से जिंदगी, उसके दम से रौनकें हैं, उसके दम से जिंदगी। यूं तो कहने को वो नूरे किबरिया पर्दे में है, यूं तो कहने को वो नूरे किबरिया पर्दे में है। और ये भी शेर बच के जाओगे कहाँ बाग़े फ़िदक के रेज़नों, बच के जाओगे कहाँ बाग़े फ़िदक के रेज़नों, बच के जाओगे कहाँ बाग़े फ़िदा के रहे ज़नो, ज़ख्म हाय क़ल्ब ज़हरा की दुआ पर्दे में है। क्या कहना है? ज़ख्म हाय क़ल्ब ज़हरा की दुआ पर्दे में है। और ये शेर खास तौर से नज़र करता हूँ बतौर खास। सुन लो बाकी है अभी अब्बास के हिस्से की जंग, है अभी अब्बास के हिस्से की जंग। सुन लो बाकी है अभी अब्बास के हिस्से की जंग, करबला के बाद भी एक करबला पर्दे में है, करबला के बाद भी एक करबला पर्दे में है। झोलियां हर एक गदागर की भरा करता है जो, वो सखी इब्ने सखी हाजत रवा पर्दे में है। दे रहा है इसलिए हर दम सदाए अल्लाह जल, दे रहा है इसलिए हर दम सदाए अल्लाह जल, दे रहा है इसलिए हर दम सदाए अल्लाह जल। कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा, क्या कहना है? बेहतरीन तस्वीर है। आहा क्या कहना है? कारवां पर्दे के बाहर रहनुमा पर्दे में है। मुफ्तिये दौरा तेरे फतवे न कुछ काम आएंगे, मुफ्तिये दौरा तेरे
फतवे न कुछ काम आएंगे। ज़ामिने ज़िक्रे गमे शाहे खुदा पर्दे में है। ज़ामिने ज़िक्रे शाहे पर्दे गमे शाहे खुदा क्या कहना पर्दे में है। हजरत गिरामी, ये अब तक जो हमने बैठकर मधो मिधत के सलीक़े सीखे और इसके ज़रिए जो इक्तिसाब फैज़ किया, आखिर में मरहूम मग़फ़ूर रज़ा सिरसिवी के वो 4 मिसरे जो इस महफ़िल का माहसल बनेंगे कि गले मिलो सब दरूद पढ़कर हसद की दीवारें तोड़ डालो। गले मिलो सब दरूद पढ़कर, ये तन्हा मेरी आवाज़ नहीं है, सारे उलमाए किराम की है, स्टेज की है, ये सबकी आवाज़ है। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे का गले मिलो सब दरूद पढ़कर हसद की दीवारें तोड़ डालो। दिलों में बुग़्ज़ो हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। गले मिलो सब दरूद पढ़कर हसद की दीवारें तोड़ डालो। दिलों में बुग़्ज़ो हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। लबों पे गीबत, दिलों में नफ़रत, फरेबी आंखें मकान गस्बी। गले मिलो सब दुरूद पढ़कर हसद की दीवारें तोड़ डालो। दिलों में बुग़्ज़ो हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। लबों पे गीबत, दिलों में नफ़रत, फरेबी आंखें मकान गस्बी। बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहाँ रहेगा। बुला रहे हो जिसे बताओ वो आ गया तो कहाँ रहेगा। हजरात, यकीनन वो वारिसे करबला, वो वारिसे मक्का मदीना, वो वारिसे सामरो काज़मैन, वो वारिसे करबला, वो वारिसे अब्बास बावफा, जहाँ एक तरफ एक हाथ में जुल्फ़िकार लेकर के आएगा तो दूसरे हाथ में अब्बास का अलम लेकर के आएगा। आइए उसी के जश्न से गाजी अब्बास से तवस्सुल करते हुए 2-3 शेर रशीद शहीदी के दुआया शेर की सूरत में हवाले किए जाएं कि जिसमें उन्होंने कहा, ऐ वफ़ाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, ऐ वफ़ाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, फिर मेरी फ़िक्र की दरिया को रवानी दे दे। मैं लिखूं मिसरे ऊला तू मानी दे दे, उसी अंदाज का फिर मिसरे सानी दे दे। मधा लिखनी है तेरी आज मेरी फ़िक्र को फिर अली अकबर के तसद्दुक़ में जवानी दे दे। मधा लिखनी है तेरी आज मेरी फ़िक्र को फिर अली अकबर के तसद्दुक़ में जवानी दे दे। अली अकबर के तसद्दुक़ में जवानी दे दे तो खुश्क मशकीज़ा लिए फ़िक्र खड़ी है दर पर, इसको सक़ाए हरम थोड़ा सा पानी दे दे। आइए हजरात, इसी के साथ मैं हुज्जतुल इस्लाम बरादर अजीज़ मौलाना सैयद बकी जाफरी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि दुआए फ़रज के साथ दुआया कलमात पर इस महफिल का हजरात, यकीनन जनाबे मौलाना बकी जाफरी साहब ने मुअर्रफ़ी कर दी है और इसे मुंतकिल कर दिया है परवेज़ कमाल साहब के हवाले। यकीनन ये भी कमाल की बात है कि हमें जनाबे मौलाना परवेज़ कमाल साहब हासिल हैं दुआए फ़रज और दुआया कलमात के लिए। उसके बाद ज़ियारत और इंशाअल्लाह ये महफ़िल जनाबे अलहाज मंजूर हुसैन ख़ान करबलाई साहब के खानवादे और उनके घराने की इंतज़ामिया के ज़रिए ऐलान करती है कि आइंदा साल इंशाअल्लाह फिर हम रहे, ये जश्न होगा, ये महफिल होगी और आइंदा साल तक के लिए मुलतवी की जाती है। खुदा बंदा आलम हम सब की आमद को कबूल करे। मौलाना परवेज़ कमाल साहब आपके हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत
हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी सलवातुका अलैहि व अला बार फी हादिहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिया व हाफिज़ा व काइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवा व तमत्तउ फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ली। परवरदिगार तुझे वास्ता है बैत रसूल का हमारी छोटी सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है बीमार करबला का जो बीमार उन्हें शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है इसी मौलूद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार हमारा आना कबूल फरमा। परवरदिगार हम में जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा फरमा। ऐ मेरे माबूद सबसे आखिर में तुझसे इल्तिजा है बीबी ज़हरा की चादर का वास्ता हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। उनके आबान व अंसार में हमें शुमार फरमा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका अला अम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नुफूस, अय्युहल मदफ़ून बि अर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्रि वज़्ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहहलल्लाहु तआला मखरजक व दुहूरक वजअलना मिन अंसारिक व अवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। भाई अबूज़र साहब ये ग्रुप एक